फाइनेंशियल सर्विस की पूरी टीम की तरफ से आप सबका दिल से हार्दिक स्वागत है। आप सब ने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर यहाँ अपनी उपस्थिति दी, इसलिए हम सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक विजन होता है और उस विजन को हकीकत में बनाने के लिए सालों की मेहनत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। केडी फाइनेंशियल सर्विस के उसी एक विजन का नाम है मिस्टर केयूर दलाल सर। साल 2001 में HDFC बैंक में सेल्स एग्जीक्यूटिव के रूप में उनकी प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई और उसके बाद 2005 से 2017 तक ICICI प्रूडेंशियल में अपनी जिम्मेदारियों को सफलता, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे फाउंडर ऑफ केडी फाइनेंशियल सर्विस, वन एंड ओनली मिस्टर केयूर दलाल सर। सर, द स्टेज इज योर्स। સો વન્સ અગેન ગુડ ઇવનિંગ. આપણી પાસે આ ઇવેન્ટ માટે ફક્ત 1 કલાકનો સમયગાળો છે. ઇટ્સ અ વેરી શોર્ટ ટાઈમ ઓફ પીરિયડ. અને ઇકોનોમીમાં કહેવાય છે કે જે વસ્તુની શોર્ટેજ હોય છે એની ડિમાન્ડ વધારે હોય છે, વેલ્યુએબલ હોય છે, રાઈટ? સો આ ઇવેન્ટને આપણે મોર વેલ્યુએબલ બનાવવા માટે મારી પાસે 2 ડિસ્ક્લોઝર છે. ડિસ્ક્લોઝર નંબર 1 કે અહીંયા ઇવેન્ટમાં મારા થકી અને મારા સર ધનંજય સર થકી જે પણ ઇન્ફોર્મેશન શેર થશે એ ડેફિનેટલી મારા પર્સપેક્ટિવથી હશે. શાયદ તમે તેને રિલેટ કરો, એગ્રી કરો, ના પણ કરો, સો વી આર પરફેક્ટલી ઓકે, રાઈટ? અને જો એ સેશન દરમિયાન તમને જે પણ વસ્તુ સારું લાગે, જે પણ લાગે કે તમે તમારા ઘરે લઈ જઈ શકો છો, આ વસ્તુ પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરી શકો છો, તો ડેફિનેટલી એને એક્સેપ્ટ કરજો. બિકોઝ આપણે અહીંયા એ ડિબેટ નહીં કરીશું કે હું રાઈટ છું, તમે રોંગ છો, અને હું રોંગ છું, તમે રાઈટ છો, રાઈટ? કારણ કે આપણી પાસે લિમિટેડ ટાઈમ ઓફ પીરિયડ છે. સો એક કહેવત છે કે જે તમે સાંભળી હશે કે જીઓ ઓર જાને દો. આ નવો ફોર્મ્યુલા છે. ઓકે. એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર નંબર 2, તમારા દિલના ટુકડાને સાયલેન્ટ મોડ પર કરીને ઉલટો રાખી દો. કારણ કે અગર તે તમારી સામે હશે ને નજર સામે હશે તો ડેફિનેટલી તમારું ફોકસ સેમિનાર તરફ ઓછું અને મોબાઈલ તરફ વધારે જશે. So I'll request you all of you to please put your mobile and silent mode and keep out mode. હવે એક વાર થાય છે શું કે એક પપ્પા એમની વેગનાર કાર લઈને એમના છોકરા સાથે કંઈક જગ્યાએ જતા હોય છે. હવે રસ્તામાં જ્યારે એ લોકો હાઈવે પરની મુસાફરી કરે છે તે દરમિયાન એક મર્સિડીઝ 120ની સ્પીડથી એ વેગનાર કારને ઓવરટેક કરે છે. હવે એ ઓવરટેક જોઈને એનો છોકરો એના પપ્પાને કહે છે કે પપ્પા ગાડી કેવી ચલાવો છો? તો પપ્પા કહે છે કે દીકરા આપણી પાસે વેગનાર કાર છે, અને એ કદાચ જલ્દીમાં હશે એટલે ઉતાવળમાં એ નીકળી ગયો હશે, તો તું ચિંતા ના કર, તું શાંતિથી બેસ. હવે 10 મિનિટ થાય છે એટલે એક મર્સિડીઝ બેન વેગનાર કારને ઓવરટેક કરે છે. એટલે પાછળો છોકરો પપ્પાને પૂછે છે, પપ્પા ગાડી કેવી ચલાવો છો? એટલે પપ્પાએ પાછો સેમ રિપ્લાય, અરે વારંવાર તને કહું છું, તું શું કામ ચિંતા કરે છે, તું શાંતિથી બેસ. એટલે છોકરો કહે ઠીક છે પપ્પા. હવે થોડા સમય પાછી 10-15 મિનિટ થાય છે એટલે એક રેન્જ રોવર 120ની સ્પીડથી વેગનરને ઓવરટેક કરે છે. એટલે છોકરાએ પાછું પૂછ્યું, પપ્પા ગાડી કેવી ચલાવો છો? પણ આ વખતે પપ્પાને આવી ગયો ગુસ્સો. ગાડી સાઈડમાં લગાવે છે અને છોકરાને કહે છે કે જો દીકરા, પહેલાં તો એ સમજ કે આપણી પાસે વેગનાર કાર છે અને તારા પપ્પાની કેપેસિટી એટલી છે નથી કે 120ની સ્પીડથી એ ગાડી ચલાવી શકશે. અને જો એ આટલી 120ની સ્પીડથી ગાડી ચલાવી લેશે તો ડેફિનેટલી એક્સિડન્ટ થશે, યા તો ગાડીની કન્ડિશન ખરાબ થઈ જશે. પરંતુ આ દરમિયાન એના પપ્પા એને બહુ સરસ સમજણ આપે છે. એ કહે છે કે પપ્પા કે બેટા, તું એમ કેમ નથી જોતો કે તારી પાછળ કોઈ રિક્ષામાં બેસીને આવે છે, કોઈ બસમાં બેસીને આવે છે, કોઈ ચાલતું પણ આવે છે? છોકરો એકદમ સ્માર્ટ હેન્ડસમલી રિપ્લાય કરે છે. છોકરો કહે છે કે પપ્પા, આ જ વસ્તુ હું તમને કેટલા વર્ષોથી સમજાવવાની કોશિશ કરું છું. જ્યારે મારા એક્ઝામમાં માર્ક આવે છે 60%, ત્યારે તમે મને બતાવો છો 70%વાળાને, 80%વાળાને, ત્યારે તમે કેમ નથી જોતા મારી પાછળ કોઈ 30%વાળો બી છે, 40%વાળો બી છે, રાઈટ?
તો આ જ્યારે પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો સબ્જેક્ટ આવે છે ને, તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં હંમેશા એક વસ્તુ યાદ રાખવા જેવું છે કે અહીંયા જે પણ સ્પીકર, કોઈ પણ ટ્રેનર અહીંયા આવશે એ તમને એમ નહીં કહેશે કે તમારા માટે શું રાઈટ છે, બિકોઝ ઇટ્સ અ સબ્જેક્ટ ઓફ પર્સનલ ફાઇનાન્સ. અને પર્સનલ ફાઇનાન્સમાં એવું કહેવાય છે કે જે વસ્તુ તમારા માટે યોગ્ય હોઈ શકે એ બાજુવાળા સાથે યોગ્ય ન પણ હોઈ શકે. સો લાઈફમાં ઇટ્સ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે પૈસાનો ડિસિઝન ખુદનો હોવો જોઈએ, બિકોઝ અલ્ટિમેટલી જીવન તમારું છે, પૈસા તમારા છે અને તમારું ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ બી અકોર્ડિંગલી તમારા તરફનું જ હોવું જોઈએ. અને કેડી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસની તમે કદાચ ટેગલાઇન જો જોશો તો એ ટેગલાઇન એવું કહે છે કે યોર લાઈફ યોર મની યોર પ્લાન. અને કેડી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ યાની કે કેયુર દલાલ એ જ સાયકોલોજી પર, એ જ ફિલોસોફી પર દરેક ઇન્વેસ્ટર જોડે કામ કરી રહ્યું છે. સો ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં એક વસ્તુ હંમેશા ન્યુટ્રલ રાખજો, દેટ ઇઝ યોર ડિસિઝન. ડિસિઝન જે છે ને એ બાજુવાળા પરથી બનાવેલો નહીં હોવો જોઈએ. સાંભળવાનું બધાનું, ઓપિનિયન બધાનો લેવાનું, પણ કરવાનું આપણું. અને આ જ ડિસિઝન એક પ્રુડન્ટ અને બોલ્ડ ઇન્ફોર્મ ડિસિઝન લેવામાં કંઈ ના કંઈ કેડી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ તમને મદદ કરે છે. હવે આપણે વાત કરીએ છીએ માર્કેટની. તો માર્કેટ જ્યારે પણ શેર બજારની વાત કરે છે તો એક રિસર્ચ કહે છે, એક રિસર્ચ એમ કહે છે કે છેલ્લા 40-50 વર્ષથી, એટલે આપણું 45 યર્સથી જે શેર બજાર છે જેને આપણે સેન્સેક્સ કહીએ છીએ, એ સેન્સેક્સની જર્ની 100 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટ થઈ હતી. આ 100 રૂપિયાની જર્ની 100 રૂપિયાથી જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ હતી, આજથી 800 ગણા પૈસા, 800 ગણા વધીને એ આજે 80,000ની આસપાસ પહોંચી ગઈ છે. જે શેર બજાર 100 રૂપિયાથી વધીને 800 ગણું વધીને 80,000ની આસપાસ પહોંચી ગયું છે, જ્યાં બેસુમાર દોલત બને છે, ધન બને છે, પણ એ જગ્યા પર ઇન્વેસ્ટર્સ પૈસા બનાવતો નથી. તો આના ઉપર એક રિસર્ચ થયું. હવે રિસર્ચમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે એ રિસર્ચ એમ કહે છે કે છેલ્લા 40 વર્ષથી પૈસા ઇન્વેસ્ટર્સના કેમ નથી બન્યા. જે રિટર્ન માર્કેટ આપ્યું છે, રાઈટ, એ ઇન્વેસ્ટર્સે રિટર્ન બનાવ્યું નથી. તો એના પછીનું જે રીઝન જે હતું, દેટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ લેક ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. શું હતું? લેક ઓફ ઇન્ફોર્મેશન્સ, કે આપણી પાસે એટલી ઇન્ફોર્મેશન્સ નહીં હતી, સમજણ નહીં હતી. સો એટલા માટે પીપલ નોટ મેડ અ મની. પણ ઇન્ટરેસ્ટિંગલી આ જ રિપોર્ટનો બીજો ભાગ એમ કહે છે કે આવનારા 40 વર્ષમાં પણ ઇન્વેસ્ટર્સના પૈસા બનવાના નથી. એના રીઝન શું છે? એનું રીઝન એક્સેસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન્સ છે. તો છેલ્લા 40 વર્ષમાં આપણા પૈસા નથી બન્યા, એનું રીઝન શું હતું? લેક ઓફ ઇન્ફોર્મેશન્સ. જ્યારે આવનારા સમયમાં નથી બનવાના રીઝન શું છે? કે એક્સેસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન છે. કે જે આજના જમાનામાં આપણી પાસે એટલી બધી એપ્લિકેશન્સ છે, સોશિયલ મીડિયા છે, ન્યૂઝ છે, ટેલિવિઝન છે, તો કંઈ ને કંઈ એ આપણને પૈસા બનાવવામાં મદદ કરવા કરતાં કન્ફ્યુઝન અને ટ્રબલ વધારે ક્રિએટ કરશે, રાઈટ. સો લાઈફમાં ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ ક્લિયરિટી. કે ગઈકાલે જ્યારે મેં આ ઇવેન્ટની પ્રિપરેશન્સ કરતો હતો ને, તો એક કોફી શોપમાં આપણી ઓફિસની નીચે બેસેલો હતો. એ કોફી શોપના ઓનર મને જોઈને મારી પાસે આવ્યો અને કહે કે કેયુરભાઈ, શું લાગે માર્કેટ શું લાગે છે? વધશે પણ ખરું. છેલ્લા 2 વર્ષથી ત્યાંનું ત્યાં જ છે, નહીં વધે છે, ઉલટાનું ઘટી ગયું છે, પૈસા નાખેલા ઓછા થઈ ગયા છે. તો મેં કહ્યું છે કે સર, મેં તો મારા જન્મકાળથી માર્કેટને વધેલું જ જોઉં છું. કારણ કે માર્કેટનો એક ઉસૂલ છે કે માણસ અને માર્કેટ એકના એક દિવસ ઉપર જ જાય છે. તો મેં એમને કીધું કે સર, મેં તો મારા જન્મકાળથી માર્કેટને વધતું જ જોઉં છું. જ્યારે મારો જન્મ થયો હતો 100 રૂપિયાનો, મારો જન્મ થયો હતો તે ટાઈમ પર શેર બજાર 100 રૂપિયાની આસપાસ હતું. જ્યારે હું 1993માં SSCની એક્ઝામ પાસ કરી હતી, એ ટાઈમ પર માર્કેટ હતું 2,000 રૂપિયાનું. જ્યારે હું મારા મેરેજ થયા 2007માં, એ ટાઈમ પર માર્કેટ હતું 15,000નું. અને 2017માં જ્યારે કેડી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસની મેં સ્થાપના કરી, ત્યારે માર્કેટ બન્યું 25,000નું. અને આજે છે માર્કેટ 78,000ની આસપાસ. હવે તમે જ કહો, માર્કેટ વધ્યું છે કે ઘટ્યું? વધ્યું જ છે, રાઈટ. સો કંઈ ને કંઈ દેટ ઇઝ અ એક્ઝામ્પલ ઓફ ક્લિયરિટી. તો લાઈફમાં હંમેશા 2 વસ્તુની ક્લિયરિટી હોવી જોઈએ. દેટ ઇઝ અ ક્લિયરિટી અબાઉટ મની એન્ડ લાઈફ. અને આપણી વચ્ચે એક જ આ બેઝિક પ્રોબ્લેમ એ જ છે કે બિકોઝ આપણી પાસે બચત પણ છે, નિવેશ પણ છે, પણ કંઈ ને કંઈ આપણો બિહેવિયર એ બચત નિવેશ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે. ઇન્ડિયામાં ઘણા બધા ઇન્વેસ્ટર છે.
ફેલ થાય છે જસ્ટ બિકોઝ ઓફ લેક ઓફ ક્લિયરિટી, લેક ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, રાઈટ? સો આજે હું તમે બધા મારા ઇન્વિટેશન્સ મેં તમને મોકલાવ્યું હતું અને તમે કદાચ એ રીડ કર્યું હશે. સો એનીવન કેન સજેસ્ટ ધ સેમિનારનો ટોપિક શું છે આજનો? કોઈ કહી શકશો મને? एनीवन? ओके फाइन. वॉलेटिलिटी अच्छा लगता है. वॉलेटिलिटी अच्छा लगता है. वॉलेटिलिटीનો મતલબ શું થાય છે? વોલેટિલિટીનો મતલબ અપ્સ એન્ડ ડાઉન. અપ્સ એન્ડ ડાઉન. હવે અપ્સ એન્ડ ડાઉન તો ઠીક છે, અપ થાય તો આપણને મજા જ આવી જાય કે માર્કેટ ઉપર જાય તો બધાને મજા આવે, પણ માર્કેટ જ્યારે નીચે જાય ત્યારે આપણને કોઈને ગમતું નથી. સો આ વોલેટિલિટી આપણા માટે સારું કેમ હોઈ શકે? સો એના માટે આપણી પાસે મોજૂદ છે મિસ્ટર ધનંજય બાંધિયા સર. He is a PhD holder in the finance. He is holding a very good strong efficiency on this particular subject. જે આપણો ફાઇનાન્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો સબ્જેક્ટ છે એના પર સ્ટ્રોંગ ધરાવે છે. He came from directly ઓડિશા, આપણા માટે ઓડિશાથી આવી રહ્યા છે. સો એમનો સ્મોલ ઇન્ટ્રોડક્શન આપું છું. તો હમણાં અત્યારે જે અમારી જોડે વાત થઈ તો હી એકચ્યુઅલી એમણે મોર દેન 4000 જેટલી ઇવેન્ટને ઓર્ગેનાઇઝ કરી છે જસ્ટ ફોર ફાઇનાન્શિયલ અવેરનેસ, ટુ સ્પ્રીડ ધ ફાઇનાન્શિયલ અવેરનેસ એક્રોસ ધ ઇન્ડિયા. હી ઇઝ અ નેશનલ સ્પીકર. તમે કદાચ એમને ટીવી, દૂરદર્શન, ઓડિયા ટીવી અને ઘણા બધા ટોક શોમાં પણ એમના પાર્ટિસિપેશન્સ જોવા મળે છે. સો તમારા વચ્ચે અને એમના વચ્ચે હું વધારે સમય નહીં લેતા હું ઇન્વાઇટ કરું છું ડૉક્ટર ધનંજય સર. પણ પર્સનલી એક વાત કહી છું એમના માટે કે હી ઇઝ માય ગુરુ. એમની પાસેથી હું મેન્ટરશિપ લઉં છું સિન્સ 2 years. સો ગુરુજી, આઈ વેલકમ ટુ યુ. नमस्कार सर, इस एनर्जी से काम नहीं चलेगा. वन मोर राउंड. हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार सर. કેમ છો? મજામાં? સોરી, મને ગુજરાતી બોલવા આવડે નથી, હિન્દી ચાલશે? રાઈટ, વન્ડરફુલ, ગ્રેટ. तो थैंक यू केयूर भाई, थैंक यू द एंटायर टीम ऑफ केडी फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर द इनवाइट. मैडम, ये सेम इवेंट आज से 15 दिन पहले मैं पुणे में कर रहा था. तो जो होस्ट है उन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि सर ने पीएचडी किया है, टीवी शो करते हैं, इतने सारे इवेंट करते हैं. तो एक पार्टिसिपेंट खड़े होकर मुझे क्या बोलता है पता है? बोलता है सर, हमको आपसे कुछ भी नहीं सुनना है, खाली एक क्वेश्चन का आंसर दे तो हम लोग चले जाएंगे. मैंने बोला बताइए सर, क्या आपको सुनना है, आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है? बोलता धनंजय सर, खाली हमको इतना बता दो मार्केट कब बढ़ेगा. बोलते सर, आपका ज्ञान का ज़रूरत नहीं, खाली इतना बता दीजिए मार्केट कब बढ़ेगा. और मैंने उसको बोला कि सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है मार्केट कब बढ़ेगा, पर मुझे ये पता है कि मार्केट कब गिरेगा. तो बोलता सर, मेरे को बताओ मार्केट कब गिरेगा. मैंने बोला जिस दिन आप पैसा डालेंगे उसका अगला दिन गिर जाएगा. बोलता है सर, ऐसा ही होता है, मैं डालता है गिर जाता है. मैंने बोला सर, आपका ग्रह तो राहु ग्रह और शनि ग्रह से खतरनाक है. ये सर, मैंने बोला प्लीज़ अपना एक फ़ोटो दीजिएगा, मैं जब भी इवेंट में जाऊंगा सबको दिखाऊंगा कि यही वो आदमी है जिनके डालने से मार्केट गिरता है, मार्केट बढ़ता है. तो सर, एज अ इन्वेस्टर ना, हमें क्या लगता है पता है, मार्केट हमारे हिसाब से चलता है. आंसर इज नो, आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा. सर, दिस इंडस्ट्रीज ऑफ 80-85 लाख करोड़, और अगर हमारा 2 लाख डालने से मार्केट गिर जाता है, बढ़ जाता है, तो हम जो साइकोलॉजिकली सोच रहे हैं ना कहीं दैट इज़ द चैलेंज विथ आवर थिंकिंग ऑफ मार्केट, नॉट विद द मार्केट. फिर वो मुझे क्या बोलते हैं, तो सर ये वाला जो ज्ञान है आप मुझे क्यों दे रहे हैं, मार्केट को दीजिए ना. तो मैंने उसको बोला कि सर, मेरा वाइफ को कॉकरोच से डर लगता है. किससे डर लगता है? कॉकरोच से. मैं किसको समझाएगा मैडम, किसको समझाना चाहिए, वाइफ को कि कॉकरोच को? ऑब्वियसली वाइफ को समझाएगा ना. कॉकरोच भाई साहब मेरे वाइफ के पास मत जाइए, उसको डर लगता है. आई कांट टीज द कॉकरोच सर, आई कैन टीज द इन्वेस्टर, एंड दैट द रीज़न वाई आज हम यहाँ बैठे हैं. तो सर, मेरे 19 साल का अनुभव पहला ये कहता है सर, देयर आर सर्टेन रूल्स एज ए इन्वेस्टर आप फॉलो कीजिए. ये जो वॉलेटिलिटी है ना, ये आपको एडवांटेज दे सकती है. तो द फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के दुनिया में सही होने का कोशिश मत करना, हमेशा कम गलत होने का कोशिश करना. दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग. 90% पीपल वाई दे डोंट हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ इन्वेस्टिंग इज, वो हमेशा ना मार्केट में सही होने का कोशिश करते हैं. मार्केट का रूल कहता है कि आप मार्केट को सही नहीं होना, आपको कम गलत होना. दैट इज द फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग. क्योंकि सर, व्हेन यू प्रेडिक्ट, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी यू डोंट अचीव व्हाट यू वांट.
तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट में ना सर प्रेडिक्शन से पैसा नहीं बनता है, प्रिपरेशन से पैसा बनता है. दैट्स द रूल ऑफ इन्वेस्टिंग. मार्केट में मैडम कभी भी किसी को ना प्रेडिक्शन से पैसा बना ही नहीं है, हर आदमी को प्रिपरेशन से बना है. आई विल गिव यू माय एग्जांपल. सर जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैंने वाइफ को 2 फॉर्म दिया था, एक इंश्योरेंस का फॉर्म और एक SIP का फॉर्म. मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि आपने इंश्योरेंस का फॉर्म क्यों दिया है. मैंने बोला अभी हमारी शादी हो गई है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, अगर कल मुझे कुछ हो गया तो ये पैसा तुम्हारा काम आएगा. फिर वाइफ ने बोला SIP का फॉर्म क्यों दिया है. मैंने बोला अगर मैं जिंदा रह गया तो ये काम आएगा. यस और नो. तो इन इन्वेस्टमेंट यू डोंट प्रेडिक्ट, यू प्लान. तो पहला रूल इन्वेस्टमेंट का क्या है कि हमको सही नहीं हो, हमको कम गलत होना है. और आयुष्मान खुराना की आपने एक मूवी देखा होगा, ड्रीम गर्ल. हैव यू सीन? देयर इज अ मूवी कॉल्ड ड्रीम गर्ल. मैडम वो बंदा उस मूवी में क्या कहता है पता है? वो कहता है इस दुनिया में सब गलत है, जो कम गलत है वही सही है. तो मैडम यू डोंट हैव टू बी राइट, यू हैव टू बी लेस रॉन्ग. दैट्स द रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको बाय डिफॉल्ट रहना पड़ेगा पॉजिटिव अबाउट मनी, लाइफ एंड इकोनॉमी. सर आप लोग जितने जन यहाँ बैठे हैं ना, अगर आपको लग रहा है आने वाला फ्यूचर अच्छा नहीं है, मेरा रिक्वेस्ट है आप पैसा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, पैसा नहीं बनेगा. दैट्स द सेकंड बाय डिफॉल्ट एटीट्यूड. आप सही हैं गलत है आई डोंट नो. द सेकंड रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज यू हैव टू बी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव अबाउट मनी, लाइफ एंड इकोनॉमी. अगर नहीं है तो यू विल नॉट क्रिएट वेल्थ. आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ नडियाड. सर यहाँ पर नडियाड करके जगह आप जानते होंगे, मैं वहाँ पर एक इवेंट कर रहा था. सर आपका गुड नेम प्लीज? संजीव सर. संजीव सर मैं नडियाड में इवेंट कर रहा था, तो एक अंकल खड़े होकर क्या बोलते हैं पता है? बोलते हैं धनंजय सर आप लोग जो स्पीकर लोगों को बड़ा बड़ा ज्ञान दे के जाते हो, आप लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है पता है? आपको ग्राउंड का प्रॉब्लम नहीं पता है. मैंने बोला सर क्या प्रॉब्लम है ग्राउंड का बताइए. बोलते हैं धनंजय भाई आज का डेट में सबसे बड़ा ग्राउंड में प्रॉब्लम क्या है पता है? पढ़ा लिखा लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है. और आप लोग क्या बोल रहे हैं? इन्वेस्टमेंट करो, देश बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा. वो कह रहे हैं धनंजय भाई आने वाला 10 साल ये देश के लिए अच्छा नहीं है, जिस तरीके से माहौल है, नेक्स्ट 10 ईयर इज वेरी चैलेंजिंग. यस यस दैट्स अ कंसर्न एरिया. यस और नो. तो मैंने बोला कि अंकल यू आर 100% राइट. आपका जो कंसर्न है ना बहुत जेन्युइन है, और ये एक चैलेंज है कि पढ़ा लिखा लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है. मैंने उसको बोला कि सर एक्चुअली इंडिया में एक प्रॉब्लम नहीं, इंडिया में 3 प्रॉब्लम है. पहला प्रॉब्लम है पढ़ा लिखा लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा. यस और नो. दैट्स अ चैलेंज. सर सेकंड प्रॉब्लम क्या है पता है? बिजनेसमैन को काम करने वाला आदमी नहीं मिल रहा है. संजीव सर वो सेकंड प्रॉब्लम है. पहला प्रॉब्लम है नौकरी नहीं मिल रहा है, और दूसरा प्रॉब्लम है आदमी नहीं मिल रहा है. और मैडम तीसरा प्रॉब्लम क्या है पता है? जिसको काम पे रखा है वो काम नहीं कर रहा है. मैंने बोला इस देश में एक प्रॉब्लम नहीं, इस देश में 3 प्रॉब्लम है. एक आदमी बोलता है नौकरी नहीं मिल रहा है, दूसरा बोलते हैं आदमी नहीं मिल रहा, तीसरा बोलते हैं जिसको काम पे रखा है वो काम नहीं कर रहा है. सर मैं भारत के 24 राज्य ट्रैवल करता हूँ 300 दिन. सर आई ट्रैवल अक्रॉस 24 स्टेट्स. आज सुबह मैं उड़ीसा में था, कल नासिक में हूँ, परसों मुंबई में हूँ. सर एक चीज़ मैं ईमानदारी से कहता हूँ, इस देश में काम का तो प्रॉब्लम नहीं है, काम करने वालों का प्रॉब्लम है. इंडिया डजंट हैव अ वर्क प्रॉब्लम, इंडिया हैज़ अ माइंडसेट प्रॉब्लम. सर आपको जिसको आपने फ्री राशन दे दिया है और 2 GB का डेटा दे दिया है, वो आदमी ऐसे ही काम नहीं करेगा. यस और नो. तो कहते हैं ना म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्टेड टू माइंडसेट रिस्क. सर यहाँ लोचा सब इधर है सर, क्योंकि हम जब इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, हम उसको प्रोसेस नहीं करते, हम उसे ऐसे ही कंज्यूम कर लेते हैं जो हमको दिखाया जाता है. और मैंने बोला सर प्लीज़ डोंट माइंड, आई कैन बी हार्ड शेयर. मैडम मेरा 2 बेटी है, एक 12 साल का, एक 6 साल का है. मैंने उनको बोला कि सर जब मुझे लगता है आई कैन बी रॉन्ग, जब मैं बच्चा पैदा करता हूँ ना, मैं खुद के भरोसे करता हूँ, सरकार के भरोसे नहीं करता हूँ. यस और नो. सर मेरी बेटी किसका जिम्मेदारी है? मेरा. आपका बच्चा किसका जिम्मेदारी है? आपका. राइट. मैंने बोला कि सर प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं खुद के भरोसे बच्चा नहीं करता हूँ, सरकार के भरोसे पैदा नहीं करता हूँ, खुद के भरोसे करता हूँ. और मैंने बोला कि सर अगर आप सरकार के भरोसे बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो आपका बच्चा आपको क्यों पापा बुलाएगा? मोदी जी को पापा बुलाएगा ना. सब कुछ वही करेंगे तो फिर तेरे को पापा बुला के फायदा क्या है? यस दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सर 3 चीज़ें हैं जो समझना है. मैंने उसको बस रिवर्स क्वेश्चन पूछा कि सर आप मेरे को जो बात कर रहे हैं कि पढ़ा लिखा लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, आप मेरे को ये बताओ पढ़ाई कहाँ से की है? सर वो BA 3rd डिवीजन में पास है, ना इधर कम्युनिकेशन स्किल है, ना ही प्रेजेंटेशन स्किल है, ना ही रीजनिंग स्किल है, ना ही राइटिंग स्किल है. और सर उसको नौकरी कौन सा चाहिए पता है? जिसमें हो जॉब सिक्योरिटी. कौन सा नौकरी? जिसमें हो जॉब सिक्योरिटी. और उसको मिल क्या रहा है? सिक्योरिटी जॉब. पंगे एक्सपेक्टेशन में ना. प्रॉब्लम इज नॉट विद द वर्क, प्रॉब्लम इज विद द एक्सपेक्टेशन. तो सेकेंड रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज यू हैव टू बी बाय डिफॉल्ट.
अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है लाइफ और मनी और इन्वेस्टमेंट को लेके, यू नॉट क्रिएट वेल्थ। अब मैं मुझे क्या किसी को खड़ा कर दी, डजंट मैटर सर। ट्रस्ट इज द बाय डिफॉल्ट एजम्पशन ऑफ ग्रोथ। सर आपको पता है लास्ट ईयर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था अहमदाबाद में, यू हर्ड अबाउट इट? 240 और पीपल डाइड। उसके बाद आपने फ्लाइट लिया है कि नहीं लिया है? लिया है ना सर। आपने टायर का प्रेशर चेक किया था? क्यों नहीं किया था बताइए सर? आपके पास ट्रस्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं है सर। वी नो सर, हमारे पास ऑप्शन नहीं है सर। विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन सर जो लॉस्ट द लाइफ, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड हमारे पास चॉइस नहीं है सर। आज इस होटल में आप खाना खाएंगे, इसने कौन सा तेल यूज़ किया आपको पता है, फिर भी आप खाएंगे, बताइए क्यों? यू हैव टू ट्रस्ट कि होटल अच्छा है तो खाना अच्छा ही होगा। मैडम एंटायर ब्रह्मांड चलता है ट्रस्ट पे, और जिस आदमी का ट्रस्ट का टी हट जाता है क्या बच जाता है? और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नस्ट। यस और नो? कहते हैं ना जिसने नहीं किया ट्रस्ट उसका लाइफ नस्ट, एंड दैट इज व्हाट साइकोलॉजी इज। सो आई विल गिव यू इंटरेस्टिंग डेटा केयूर भाई। इंडिया में हर दिन 30,000 आदमी का नेचुरल डेथ होता है भैया। हर दिन जो रात को सोते हैं ना सर, 30,000 आदमी सुबह नहीं उठते हैं। 30,000 इज अ बिग नंबर। यस, फिर भी आप रात को अलार्म लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं बताइए? आपको तो पता है ऐसे मैं ही उठेगा, ऐसा नहीं कि धनंजय भाई ने बोला है तो कल मेरा लॉटरी निकलने वाला है, ऐसा नहीं है ना। यू हैव टू अज्यूम, यू हैव टू गेट आउट, देयर इज नो ऑप्शन सर। तो संजीव सर हमारे पास एक्चुअली ऑप्शन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर ऑल ऑप्शनलेस। तो द सेकंड रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज यू हैव टू बी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव। सर इंडिया में लोचा क्या है पता है अभी? सर सबसे बड़ा लोचा ये है कि मैडम आदमी रात को 8 बजे घर जाता है, बरमूडा पहनेगा और 80 किलो का बोरा सोफा में गिर जाएगा, और गिरने के बाद पूरा देश और दुनिया भर का खबर देखेगा। उसका खुद का घर युगांडा बन के रखा है, उसको चिंता नहीं है, उसको देश का बहुत चिंता है। ये सर नो, ना ही वाइफ से बात करता है, ना ही बच्चे से बात करता है, ना ही माँ बाप से बात करता है। मैडम उसको वो चीज़ का चिंता है, इसको लेना देना ही नहीं है। एक अंकल मुझे बोल रहे हैं, धनंजय कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन ईरान, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन ईरान। मैंने बोला बता भी देगा तो आप क्या कर लेंगे? ना ही तुम प्राइम मिनिस्टर है, ना ही तुम फॉरेन सेक्रेटरी है, ना ही तुम इंडियन आर्मी में है। यस और नो? मैंने बोला अगर आपका बैंक में 6 डिजिट का बैलेंस नहीं है ना, आपको वार का टेंशन नहीं होने का है। इस वार को सॉर्ट आउट करो, आप उस अलग चिंता में बैठे हैं। मैडम पीपल आर टॉकिंग अबाउट एन एजेंडा जो उसको सॉल्व कर ही नहीं पाते हैं। सर आप सुबह कोई भी पान टपरी में चले जाइए, टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होगा पता है? ये क्या प्राइम मिनिस्टर है, ये क्या चीफ मिनिस्टर है, ये क्या फिनेंस मिनिस्टर है, और पान वाला ऐसे सुनता है जो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन है। ये सर नो, ये टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ पान वाला वो क्या कर लेगा बताइए सर? सर अगर आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं पसंद ना, मेरा रिक्वेस्ट आप इलेक्शन लड़िए, और मेरा वादा है सबसे पहला वोट मेरा होगा। सर लड़ना नहीं है, पीछे से प्रवचन देना है। सर आज अ कॉमन मैन नोट इट डाउन सर, आपका सिर्फ 3 ही काम है। चौथा आप जो कर रहे हैं यू आर किलिंग योर टाइम। पहला काम है पैसा कमाना, दूसरा काम है ईमानदारी से टैक्स देना, और तीसरा काम है इलेक्शन के दिन वोट दे के आ जाना। इसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हैं, टेक्निकली यू आर किलिंग योर टाइम। इफ यू डोंट लाइक अ सिस्टम, कम टू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। ये सर पंगे ये है सर, आदमी ना अंबानी को गाली दे रहा है उसी का नेटवर्क यूज करके। ये सर इस और ट्रेजेडी देखिए सर, उसी का नेटवर्क यूज करके उस गाली दे रहा है। एक बंदा बोल रहा है धनंजय भाई ये जो एयरपोर्ट आएगा ना अदानी को दे देगा, देख लेना। मैंने कहा तू ले ले, बोलता मैं कैसे ले ले? मैंने तू ले लेना, कोई ना कोई तो लेगा ना। सो उसको लेना नहीं है उसका सर, उसको वो चीज़ का चिंता है, इसको पढ़ाई नहीं बताइए। अब इस आदमी के साथ हम क्या बात करें बताइए? मैडम कहीं ना वी आर इन अ लेवल जहाँ पर हमारी मैच्योरिटी वहाँ लेवल पे गई नहीं है सर। विथ एनी पॉलिटिकल सर, यू कैन हैव अ डिफरेंट पॉलिटिकल व्यू, यू कैन हैव अ डिफरेंट व्यू ऑन बिजनेस। मैं कह रहा हूँ जो आदमी जहाँ खड़ा है ना उस लेवल पे खड़े होकर दिखाइए। गलत सही तो बाद में आएगा सर, उस लेवल पे खड़े होकर दिखाना इज अ बिग चैलेंज। यू कैन सपोर्ट द प्राइम मिनिस्टर और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। एट 75 एज अपने आप को मेंटेन करके हर फोरम में खड़ा होना अपने आप में एक चैलेंज है। बाकी टॉपिक डिस्कस हो सकता है, गलत सही आई डोंट गेट इनटू। व्हाट आई एम सेइंग इज जो कर रहा है ना वो भी चैलेंजिंग है। यस और नो? प्लीज अंडरस्टैंड। आदमी अपना 400 स्क्वायर फीट का दुकान में टैक्स का चोरी करता है, जो 400 स्क्वायर फीट का शॉप है उसी में टैक्स चोरी करता है, और दुनिया को ज्ञान देता है कि भैया ये चोर है। तो मैडम जब रावण दहन होता है ना दशहरा में, तो जलता हुआ रावण क्या बोलता है पता है? तुम में से कोई राम भी है क्या? तुम में से कोई राम है क्या? तुम तो खुद रावण है, तुम हमको क्या चला रहा है? ये सर नो, व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट साइकोलॉजी इज। तो इन्वेस्टिंग का सेकंड रूल है, यू हैव टू बी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव, यू डोंट हैव अ चॉइस। एक अभी सिल्लीगुड़ी करके जो बागडोगरा के पास, बागडोगरा करके जगह है, वहाँ एयरपोर्ट में इवेंट कर रहा था एयरपोर्ट के पास। तो वहाँ पर एक सर बोलते हैं धनंजय आप बोलते हो पॉजिटिव है ना, हम तो रह रहे हैं, बट इतना सारा जो खबर आ रहा है ना ये डिस्टर्ब कर दे रहा है।
अभी आप देखो धनंजय भाई, यूक्रेन का रशिया से प्रॉब्लम चल रहा है। यस, यूक्रेन रशिया का वार खत्म नहीं हुआ, इट इज ऑल गोइंग। इजराइल और ईरान का चल रहा है, यूएस इन्वॉल्व है, चाइना का वियतनाम के साथ कभी भी हो सकता है। यस, आई एम श्योर अगर आप ग्लोबल देखते हैं। बोला धनंजय भाई इतना खबर नेगेटिव पॉजिटिव कैसे सोचें? और बोलता है धनंजय भाई आप लिख लेना, ये जो प्रॉब्लम सेटअप हो रहा है ना, 6 महीने के अंदर होने वाला है वर्ल्ड वॉर 3। क्या होने वाला है? वर्ल्ड वॉर 3। और इस बार कौन सा वार होगा पता है? न्यूक्लियर वार। और 6 महीने में दुनिया खत्म। मैंने बोला अंकल ये तो टेंशन ही नहीं है। मैंने बोला अंकल इस दुनिया में मरने का टेंशन, इस दुनिया में जीने का टेंशन है। सर आपका पड़ोसी बड़ा कार ले लेगा ना, आप देख के जल के मर जाएंगे, आपको जलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? एक इन्वेस्टर मुझे केयूर भाई क्या बोलते हैं पता है? ऐसा घर बनाऊंगा पड़ोसी जल के मर जाएगा। ऐसे ऐसे तो महान आदमी यहाँ पैदा होते हैं। बोलते हैं पड़ोसी को जला के मार देना है, उसका एक्सेल में एंट्री नहीं हो रहा है। ऐसा घर एंट्री, ऐसा एक्सेल निकालते कैसे? हाउ डू यू क्रिएट सर? व्हाट आई एम आस्किंग सर, कैसे क्रिएट करें? राइट, तो यू हैव टू बी बाय डिफॉल्ट सर। मानो, और सर लोग जो ज्ञान देते हैं ना, धनंजय भाई आगे का जमाना अच्छा था, अभी का जमाना, मैडम हर जमाना अपनी जगह अच्छा है, और आगे का जमाना भी इतना कोई अच्छा नहीं था जितना हम तारीफ करते हैं। सर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, 1914 वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार। मैडम 2 करोड़ पीपल डाइड। सर 2 करोड़ लोग मर गए 1914 में। सर 1939 सेकेंड वर्ल्ड वार, यू नो हाउ मेनी पीपल डाइड? 8 करोड़ पीपल, 8 करोड़ लोग मर गए 1939 में। वो युद्ध से 8 करोड़ लोग मरना इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। यस और नो? तो जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि आने वाला फ्यूचर अच्छा था, आगे अच्छा, नो मैम, हर जमाना अपनी जगह सही है। वी नॉट डिबेट आप सही हो कि मैं गलत हूँ, ये चलता रहेगा मैडम। दिस विल ऑल गो ऑन। आप भी नहीं रोक पाएंगे, मैं भी रोक नहीं पाऊंगा। दिट इज द जर्नी, इट विल कंटिन्यू। सर ये देश 100 साल आपके बिना भी चलेगा, मेरे बिना भी चलेगा। ये सर नो? सर आपका गला में जो चेन है 100 साल बाद किसके गले में होगा आपको नहीं पता है, और उसको भी नहीं पता है कि आपका था। ये सर नो? दैट्स द ब्यूटी सर। इट विल गो ऑन, द सो विल गो ऑन सर। बट आपको सर कहीं ना कहीं डिसाइड करना है इन विच इंडिया यू आर लिविंग। सर इंडिया के अंदर 7 इंडिया है सर। इन इंडिया वी हैव 7 इंडियाज। एक इंडिया है जहां पर अभी भी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाता है। आउट ऑफ 150 करोड़ सर 80 करोड़ पीपल आर गिवन फ्री राशन। 80 करोड़ इज अ बिग नंबर। 80 करोड़ छोटा नंबर नहीं है सर। वो एक इंडिया, एक बांद्रा वाला, साउथ बॉम्बे वाला इंडिया, अदानी वाला इंडिया, अंबानी वाला इंडिया। एक आपका इंडिया है सर। आप डिसाइड करो आपका इंडिया का सर। यू फोकस ऑन योर इंडिया, यू डोंट फोकस ऑन एंटायर इंडिया। आप अपने इंडिया पे काम करिए सर, लाइफ विल बिकम ईजी। जब एक आदमी पूरा इंडिया पे फोकस करता है ना मैडम, वो आदमी दुखी हो जाता है। और आप लोग जितने जन बैठे हैं, आपका लाइफ का सिर्फ 3 ही कंपटीशन है सर। आप लोग जितने जन बैठे हैं ना, आपका लाइफ में सिर्फ 3 ही कंपटीशन है। अगर इन लोगों से ज़्यादा पैसा है ना, आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी हो। आप लोग जितने जन बैठे हैं ना, आपका 3 कंपटीशन कौन है पता है? आपका मामा, साला और साडू। अगर आपको, आपके पास इनसे ज्यादा पैसा है ना, आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी है सर नो। वाइफ कंपेयर कर लेते हैं मामा के साथ, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये सर नो, हमारा तो बेंचमार्क 3 ही है सर। आपको कोई मन करता है अंबानी से ज्यादा पैसा कमाने का? करेगा ही नहीं। आपका तो इंडिया है ही नहीं। हमारा 3 कंपटीशन कौन है? साला, साडू और मामा। ये 3 बेंचमार्क अगर आपका हो गया, लाइफ बिकम इजी। यू टॉक अबाउट योर इंडिया सर, यू डोंट टॉक अबाउट एनी इंडिया। So the second rule of investing is you have to be by default positive. माहौल क्या है नहीं है doesn't matter. And sir आपका belief system about money has to be strong. पैसे को लेके जो वाइब्रेशन है बात करें पॉजिटिव। सर मनी इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक, क्योंकि सर आज का जो टॉपिक है ना, चाहे वो केयूर भाई हो या मैं हूँ, कोई भी आपको खड़े होकर नहीं सिखा सकता है। केयूर भाई का 25 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 19-20 साल का है। कुछ भी होने के बाद हम आपको ये ज्ञान नहीं दे सकते हैं कि आपके लिए सही है। इन्होंने बोला ना योर मनी योर प्लान, आपका पैसा आपका जिम्मेदारी है। इतने लोगों को ट्रेन समझाते हैं, करते हैं, वो इनका बेस्ट पार्ट क्या है पता है? वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ सही है। वो कह रहे हैं आपके लिए क्या सही, आप आइडेंटिफाई कीजिए। बिकॉज वी ऑल इन दिस हॉल आर डिफरेंट। यस मैडम, हमारा इनकम डिफरेंट है, खर्चे डिफरेंट है, जिम्मेदारी डिफरेंट है, सपने डिफरेंट। तरीका कैसे हो सकता है? राइट, इफ वी आर ऑल डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ इनकम, कंजम्पशन, एस्पिरेशन, एक्सपेंसेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो तरीका कैसे हो सकता है? जब तरीका अलग है तो अप्रोच भी अलग होगा। राइट, तो इन्वेस्टमेंट में वी डोंट हैव टू फाइंड व्हाट इज राइट, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज राइट फॉर मी। इन्वेस्टमेंट में राइट सोना लेना है कि प्रॉपर्टी लेना है कि म्यूचुअल फंड लेना है, सर ये आपका डिसीजन है। क्यों लेना है वो इंपॉर्टेंट है। सर आप में कोई बात बताइए, मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? सर हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया? एनीवन? नहीं पता है, होना भी नहीं चाहिए। करके क्या कर लेंगे आप? आपको कौन सा केबीसी में जाना है? यस और नो? तो हर चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है सर। इंडिया में लोग स्ट्रक क्या सीखे पता है? उनको दिमाग में अभी भी चल रहा है कौन बनेगा करोड़पति।
सर विल टॉक अबाउट क्यों बनना है करोड़पति और कैसे बनना है करोड़पति. सर कौन बनेगा करोड़पति इज ड्रिवन बाय लक. आपका नंबर लगेगा, फास्टेस्ट फिंगर होगा, आंसर आएगा. सर कौन बनेगा करोड़पति में 150 करोड़ का आबादी में एक सीजन में 100 लोग क्वालिफाई होते हैं. वी डोंट टॉक अबाउट कौन बनेगा करोड़पति, वी टॉक अबाउट क्यों बनना है करोड़पति और कैसे बनना है करोड़पति. सर तो हर चीज़ का ज्ञान नहीं होना सर, और जितना कम ज्ञान होगा उतना रिटर्न ज़्यादा मिलेगा. सर अगेन दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर फॉर द सेशन. जिस इन्वेस्टर को जितना कम ज्ञान होगा उसको उतना ज़्यादा रिटर्न मिलता है. ये इतिहास कहता है सर. अमेरिका का डेटा, यूएस का डेटा क्या कहता है पता है? यूएस का डेटा कहता है द पीपल हु हैव क्रिएटेड मैक्सिमम वेल्थ आर द पीपल हु आर डेड. द पीपल हु आर डेड, जो मर गए उन्हें ज़्यादा रिटर्न कमा है. क्यों पता है? वो डेली देखता नहीं. मैडम अभी जो मेरा ब्रदर इन लॉ है ना, हमारे घर में 4 साल बाद आए. अब संजीव सर 4 साल बाद आए, और जैसे ही वो हमारे घर आए केरू भाई, उसने बेल बजाया. मैडम मेरी बेटी दौड़ दौड़ के गई, उसने गेट खोला, और जैसे उसने मेरी बेटी को देखा, और बेटी को देख के क्या बोलता है पता है? ये तो कितनी बड़ी हो गई है. और विश्वास करो हमको पता ही नहीं चल रहा है बड़ी हो रही है. उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या लाइफ, अगर आपको बड़ा हुआ दिखना तो मामा बनना पड़ेगा. क्या बनना पड़ेगा? मामा. आप मामा नहीं बनेंगे तो पैसा नहीं बना. आप जो डेली मम्मी बन के देखते हैं ना, सू लागे छे, ऐसे पैसा नहीं बनता है. अब एक इन्वेस्टर टीवी शो में बोलता है, धनंजय भाई मार्केट क्या लगता है? मैंने बोला ट्रम्प मेरा काका है जो मैं आपको बताएगा मार्केट क्या लगता है. सर आज भाई साहब रात को क्या 8 बजे ट्वीट करेगा मेरे को क्या पता है? एक ट्वीट से 500 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता. तो हाउ कैन आई टॉक इन अ पब्लिक फोरम मार्केट क्या लगता है? आई डोंट टॉक अबाउट मार्केट, आई टॉक अबाउट माइंडसेट. तो एक चीज़ तो क्लियर है कि सर इफ़ यू रियली वांट टू क्रिएट वेल्थ इन दिस ग्रेट कंट्री, एक तो आपको कम गलत होना है, और दूसरा एजम्पशन यू हैव टू बी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव. अगर ये एजम्पशन नहीं है, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है पैसा मत डालिएगा. पैसा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा सर. विश्वास कीजिए, यू विल नेवर क्रिएट, बिकॉज यू ऑलवेज क्वेश्चन एवरीथिंग. हर चीज़ को आप सवाल में क्वेश्चन डाल देंगे सर. दैट्स द सेकंड एजम्पशन. लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टुडेज टॉपिक, जो मुझे लगता है डिस्कस करना है. व्हाई इंडिया? सर आज का डेट में मेरा ये मानना है, आपको अगर इंडिया को समझना है ना, तो आप इंडिया को मत समझिए, आप खुद को समझ जाइए, और आपके पास क्या हो रहा है वो बताएगा इंडिया क्या हो रहा है. आई आस्क यू क्वेश्चन, उसका आंसर दीजिएगा. सर अभी भी वापी में ज़्यादा पैसा किनके पास है? जिनका उम्र 30 साल से ऊपर है कि 30 साल से कम है? अभी भी वापी में ज़्यादा पैसा किनके पास है? जिनका उम्र 30 साल से ऊपर है कि 30 साल से कम है? जिनका उम्र 30 साल से ऊपर. एग्रीड? मेरा सेकंड सवाल, मोबाइल किसका महंगा है? बस यही बता रहा है इंडिया कहाँ जा रहा है. सर द करेंट जनरेशन इज अ जनरेशन ऑफ स्पेंडर, और आपका जनरेशन वाज द जनरेशन ऑफ सेवर. सर भारत जा रहा है फ्रॉम अ सेवर इकोनॉमी टू अ स्पेंडर इकोनॉमी. और सर आज का पीढ़ी को ज़्यादा टेंशन है, उसको खुद का भी सल्टाना है और पापा का भी सल्टाना है. ये सर नो, उसको पता है पापा जितना जमा किया है सोडा मैं ही करेगा. पापा का प्लॉट एफडी कौन बेचेगा? मैं ही बेचेगा. पापा खर्चा नहीं कर पाएगा. पापा ने इतना जमा कर लिया है ना, पापा जीते जी खर्च नहीं कर पाएगा. कितना टेंशन है सोचो, है कि नहीं मैडम? एब्सोल्युटली. क्योंकि सर खर्चा करना इज ऑल्सो कंडीशनिंग सर. जैसे पैसा कमाना एक स्किल है, पैसा बनाना एक स्किल है, पैसा खर्चा करना, हर आदमी खर्चा नहीं कर पाएगा. सर जिस आदमी ने बचपन से पैसे का प्रॉब्लम देखा है वो खर्चा नहीं कर पाएगा, बिकॉज इज नॉट कंडीशन टू स्पेंड. इट इज कॉल्ड ह्यूमन कंडीशनिंग. मैडम अभी भी ये लोग एयरपोर्ट में 400 को कॉफ़ी पी जाते हैं, और मैं 70 का पानी नहीं खरीदता हूँ. मैं पानी खरीद सकता हूँ, लेकिन मैडम मुझे क्या लगता है फ्लाइट में तो फ्री में मिलता है ना, 70 रुपये क्यों खर्चा करना? आई कैन स्पेंड बट आई एम नॉट कंडीशन टू स्पेंड. इट्स ऑल माइंडसेट सर. इंडिया और सर ये मूवमेंट होने का केयूर भाई सबसे बड़ा रोल क्या था पता है? कोविड. सर आप मानो या ना मानो, कोविड ने जो सिखाया है ना, शायद जिंदगी ने उतना नहीं सिखाया. काका कोविड में क्या हो पता है? 35 साल का लड़का चला गया और 60 साल का पापा जिंदा रह गए, और लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो. मैडम देयर आर फ्यू सिटीज़ जहाँ पर हमने देखा है जवान लड़का चला गया और पिताजी जिंदा रह गए, और लोगों को ये एक्सेप्टेंस नहीं हो कि लाइफ को इतना सीरियस लेने का ज़रूरत नहीं है. यू सी पोस्ट कोविड पीपल आर स्पेंडिंग मोर. येस और नो? आप देखो कोविड के बाद लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं. मैडम मुझे बैंगलोर में 25 साल का लड़का क्या बोलता है पता है? बोलता है सर मुझे अपनी पापा की तरह ज़िंदगी नहीं जीना है. बोलता है मेरे पापा ने अपना जवानी बेच दिया बुढ़ापे के लिए. बोलता आज मेरे पापा के पास पैसा तो है पर एनर्जी नहीं है. मम्मी को घुमाता तो मम्मी बोलती है जिस उम्र में घुमाना तो घुमाया नहीं, आज मेरा पैर काम नहीं कर रहा तो घुमाता. येस और नो? दे हैव अ रिग्रेट्स है. उसको लगता है कि मेरे पापा ने लाइफ को एंजॉय नहीं किया. दे डोंट अंडरस्टैंड कि पापा का इतना इनकम नहीं था, उस समय इतना इनकम नहीं था. उसको ये समझता नहीं, उसको लगता है मेरे पापा ने अपने लाइफ को वेस्ट कर दिया सर.
दैट्स द रीजन व्हाई देयर इज अ चेंज इन माइंडसेट. गलत सही, मैंने बोला ना ये टॉपिक में गलत सही का बात ही नहीं करूंगा. मैं कह रहा हूँ इट्स अ साइकोलॉजिकल चेंजेस. यस सर, देखो कितना पावरफुल पॉइंट है. बोलता है सर मेरे पापा ने अपना जवानी बेच दिया बुढ़ापे के लिए, और ये पॉइंट बहुत फैमिली में दिख रहा है सर. वी आर विटनेसिंग द सेम चैलेंज मैक्सिमम फैमिली. सर आने वाला 25-30 साल, नेक्स्ट 20-25 ईयर्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यू गो अगेंस्ट मी, डोंट गो अगेंस्ट दिस कंट्री. 25 साल में एक अलग ही ट्रैक्शन आएगा सर. लोग कैसे खर्चा करेंगे आई डोंट नो, बट दिस विल बी अ स्पेंडिंग इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स. आपका खुद का घर खर्चा बता रहा है, देश कहाँ जा रहा है सर. आज से 25 साल पहले घर पे एक ही साबुन आता, लाइफ बॉय. यस मैडम, 25 साल पहले एक ही साबुन, कौन सा? लाइफ बॉय. उसका भी 2 टुकड़ा होता था, आधा इस बाथरूम में, आधा उस बाथरूम में. सर आज के डेट में हर मेंबर के लिए एक साबुन है. ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, खानदानी स्किन. यस और नो. और मजे का बात क्या है पता है, ये लोग स्ट्रॉबेरी का फेस वॉश लगाते हैं, खाते पिज्जा है. अरे स्ट्रॉबेरी खावानू छे, लगावो નથી. यस और नो. ग्लो आवे नहीं. ग्लो आएगा कि तू कचरा टूसेगा तो ग्लो आएगा कैसे? दिस इज जस्ट अ बिगनिंग मैडम, ये जस्ट शुरुआत है. आपको घर पे दिख रहा है. मैं कह रहा हूँ ना, आपको पेपर पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप खुद का अंदर में पढ़ लो कि देश जा कहाँ रहा है. मैडम यू डोंट हैव टू बी एन इकोनॉमिस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. मैडम टैरिफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, द ट्रैफिक अराउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके आज सर अब जो अच्छा प्रीमियम गाड़ी है, 6 महीने का वेटिंग है. मैडम इंडिया में फेब जो लगन डे होता है ना, जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जो लगन का डे होता है सर, फेब तक एंटायर कंट्री में हर 5 स्टार होटल सोल्ड आउट है. टिल फेब अगर किसी का शादी है मैडम, एवरी 5 स्टार प्रॉपर्टी सोल्ड आउट टिल फेब. आज के डेट में एयरपोर्ट हैज बिकम अ न्यू बस स्टैंड. यस और नो. व्हाट आई सर, अभी एजेंट को बोलो कि मेरे को फर्स्ट एसी सेकंड एसी में टिकट चाहिए, बोलता नहीं होगा, थर्ड एसी चलेगा. एजेंट आगे क्या बोलता था, आप क्या बोलते, थर्ड चलेगा, फर्स्ट एसी सेकंड ही महंगा है. अभी बोलता है फर्स्ट एसी सेकंड एसी प्रीफर्ड है, नहीं हुआ तो थर्ड एसी है. यस, थर्ड एसी हैज बिकम अ स्लीपर क्लास. यस, थर्ड एसी इज नो मोर थर्ड, इट इज बिकम स्लीपर क्लास. यस, वी आर सीइंग अ ट्रांजिशन. ये देश सर, यहाँ जुडियो है, जुडियो है ना. जुडियो ने क्या किया पता है, जो आदमी फुटपाथ से ले रहा था आज मॉल से ले रहा है, वही 300 का टिस्को मॉल पे मिल रहा है. दैट्स कॉल्ड फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी. ये इकोनॉमी जो फॉर्मलाइजेशन होती है ना, ये दिखता है इकोनॉमी में सर. मैं कह रहा हूँ ना सर, यू डोंट हैव टू रीड न्यूज़पेपर, आपके आजू बाजू चल रहा है वही इकोनॉमी है. अभी सर कुछ दिन पहले ना मेरे घर में नाली मतलब पता है ड्रेनेज, वो खराब हो गया था. तो मेरी मम्मी ने किसी को बुलाया ठीक करने के लिए. मैडम वो आया, उसने 2 मिनट में ठीक कर दिया. कितने मिनट में? 2 मिनट में. और संजीव सर मम्मी को क्या बोलता है पता है, मैडम 500 रुपया हुआ. अब मम्मी बोलता है भैया ये 2 मिनट का थोड़ी ना कोई 500 देता है, मैं 200 रुपये से 1 रुपया ज़्यादा नहीं देगा. थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया मैडम. अचानक से मेरी दादी बाहर आई. मेरी दादी ने बोला क्या हुआ? बोला मम्मी जी ये थोड़ा सा नाली ख़राब हो गया, इसको बुलाया था. तो दादी ऐसे टेढ़ा होकर देखती है. बोले ठीक हो गया? बोलता हाँ. बोलते एक काम कर, इसको 50 रुपये दे दे. अब ये परेशान, ये बोल रहा है, ये अम्मा 200 ने डोकरी आके 50 बोल रही है. फिर मैं घर पे गया, मैंने 400 लिया, उसको पॉकेट में डाला, भैया जाओ. मैं 400 देने को तैयार, मम्मी और दादी. अब बताओ गलत कौन है, सही कौन है? सब अपनी जगह सही है. दैट इज व्हाट आई वांट टू प्रूव. देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग. आपको आइडेंटिफाई करना है कि चैलेंजेस मेरे साथ तो नहीं है. सर आपका स्पेंडिंग पैटर्न चेंज हो गया है. सर 80% ऑफ एप्पल आर सोल्ड ऑन EMIs. जो एप्पल के प्रोडक्ट है ना भैया, 80% आर सोल्ड ऑन EMI. जिसका 50,000 का पगार है क्योर भाई, उसके हाथ में 1 लाख का मोबाइल कैसे ले लिया? EMI पे. अभी इंडिया में सिर्फ 3 ही क्लास बचा है, अपर क्लास, लोअर क्लास और हाँ मिडिल क्लास खत्म हो गया है. से लोग हनीमून जा रहे हैं लोन लेके. यस और नो. व्हाट आर टॉकिंग अबाउट? सर अभी इस एरिया में 3 BHK का क्या रेट चल रहा है? एनीवन? अच्छा सोसाइटी में 45. अच्छा सोसाइटी जहाँ थोड़ा फैसिलिटी हो, स्विमिंग पूल हो, सब 60 से 70 lakhs अप्रोक्स, राइट? 70 lakhs के आसपास. आई डोंट नो, आई गो विद एजम्पशन, राइट? तो भैया 70 lakhs का आदमी घर ले रहा है. घर में 2 खर्चा होता है, एक होता है कॉस्ट ऑफ बाय, दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ एंट्री. घर हैज ऑलवेज 2 कॉस्ट, वन इज कॉस्ट ऑफ बाय, सेकंड इज कॉस्ट ऑफ एंट्री. तो जो आदमी 60 लाख का 70 लाख का घर ले रहा है, उसका एंट्री होगा 1 CR में. 30 लाख 25 लाख का इंटीरियर, रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग. और सर घर लोग आदमी कैसे ले रहे हैं पता है आज के डेट में? 80-20. व्हाट इज 80-20? 20% डाउन पेमेंट, 80% लोन. और ये लेने के बाद में डालते हैं फेसबुक में फोटो, विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, हैप्पी टू शेयर माई हाउस वार्मिंग पार्टी. यस और नो. खाली आप कमेंट में लिखो, ये भी लिख लोन कितने का लिया है.
सर वो जो बाथरूम का जो कॉमन एरिया है ना, खाली वो उसका है, बाकी पूरा बैंक का है। आप लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, अरे भाई कांग्रेचुलेशन बैंक वाले को बोलो, उसको क्यों बोल रहे? वो 80% का EMI लिया, उसको क्या लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिसका 20,000 का SIP चला, उसको क्या बोलेंगे पता है? लुट जाएगा, डूब जाएगा, मिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा, ये सर नो। तो आतंकवादी सिर्फ वहाँ नहीं होते हैं सर, कुछ कुछ फाइनेंशियल टेररिस्ट भी होते हैं जो ना खुद पैसा कमाएंगे, नो आपको पैसा कमाने देंगे। सर आप ना एक 20 लाख का गाड़ी लो और फेसबुक में डालो, आपको सुबह तक 100 मैसेज आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन दादा। और आप किसी को बोलो मैंने 20 लाख इन्वेस्टमेंट किया, आपको क्या बोलेगा? लुट जाएगा, मिट जाएगा और डूब जाएगा। सर आई एम नॉट अगेंस्ट EMI सर, मैं EMI के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ जितना आप कॉन्ग्रेचुलेशन EMI को देते हैं ना, उतना इंपॉर्टेंस आप इन्वेस्टमेंट को दीजिए, लाइफ बिकम डिफरेंट। आई एम नॉट अगेंस्ट कि कार मत लीजिए, मैं यहाँ पर ज्ञान नहीं देगा कि आप कार नहीं लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं सर, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज जितना आप इंपॉर्टेंस EMI को देते हैं, उतना इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट को दीजिए, लाइफ विल बिकम ईजी। सर एक मैथमेटिकल रूल बोलता है आपका EMI आपके इनकम का 30% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। योर EMI शुड नॉट बी मोर देन 30% ऑफ इनकम। अगर आपका EMI आपके इनकम का 30% से ज़्यादा है, योर सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट सैलरी, इट इज स्लेवरी। अगेन आई रिपीट, जिस आदमी का EMI उसके इनकम का 30% से ज़्यादा है, उसका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी नहीं, क्या है? स्लेवरी, वो गुलामी है। और सर ये प्रेशर दिख रहा है उसके। सर यंग IT इंजीनियर्स 25 साल 27 साल की उम्र में फ्लैट ले लेते हैं, घर से प्रेशर आता है कि फ्लैट ले ले। सर वो 35 साल तक ना, बहुत 35 साल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एज। सर ये रूल कहता है, दिस इज अ मनी मैनेजमेंट रूल, 35 तक ना अपना EMI सबसे कम रखो। 35 तक लाइफ में एक्सपेरिमेंट करो, जॉब छोड़ना है, खुद का स्टार्ट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, शादी हुआ है, बच्चे 1-2 हैं। 35 के बाद इट इज़ ऑल जिम्मेदारी। आफ्टर 35 लाइफ इज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर फिर भाई वो बोलते हैं कि 35 साल की उम्र के पहले आप वेकेशन में जाते हैं और 35 साल के बाद मिशन में जाते हैं। 2 बच्चा और वाइफ, वो लोग बीच में एंजॉय कर रहे हैं, आपके कंधे में पर्स लगा हुआ है। ये सर नो, यू डोंट गो ऑन वेकेशन, यू गो ऑन मिशन। और ये दिख रहा है हमारी इकोनॉमी में। तो सेकेंड रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज सर, आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, पहले ट्रैक कीजिए कि कहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या हमें वो बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट में। और गलती एक्सटर्नल नहीं है सर, आपके खर्चे पे कंट्रोल नहीं है। आजकल लोग सरकार को ब्लेम करें, नो सर, गवर्नमेंट शुड नॉट बी ब्लेम, आपका खर्चा पे कंट्रोल नहीं। आई विल गिव यू एग्जांपल। सर एक बार क्या होता है ना, एक हस्बैंड को ऐसा फील होता है कि उसकी वाइफ को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। अब मैडम डायरेक्टली वाइफ को तो बोल नहीं सकता है, तो अपने डॉक्टर दोस्त के पास जाता है और डॉक्टर दोस्त को क्या कहता है कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। तो उसका डॉक्टर दोस्त कहता है आर यू श्योर? वो कहता है आई एम 100% श्योर देयर इज सम प्रॉब्लम। तो केयूर भाई उसका डॉक्टर दोस्त बोलता है कैन यू टेल मी द डिस्टेंस, ये कितना दूर से प्रॉब्लम आ रहा है? तो मैडम वो बोलता है देख मैंने डिस्टेंस तो नोटिस नहीं किया है, पर एक चीज़ बहुत क्लियर है, देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम। बोलता है काम कर, रात को घर पे जा, घर पे जाके चेक कर कि ये प्रॉब्लम कितना दूर से आ रहा है। तो मैडम वो घर पे जाता है, वाइफ किचन में खाना बना रही हो, हस्बैंड पार्किंग में खड़ा है। वो पार्किंग से चिल्ला के कहता है जानू मैं आ गया, खाने में क्या बना है? वाइफ का रिप्लाई नहीं आता है। वो कहता है ठीक है। फिर वो चला जाता है ड्राइंग हॉल में, और ड्राइंग हॉल में जाके कहता है जानू मैं आ गया, खाने में क्या बना है? फिर भी वाइफ का रिप्लाई नहीं आता है। वो कहता है ठीक है। फिर 10 मिनट बाद में वो जाता है किचन का गेट के पास, वहाँ पर जाके कहता है जानू मैं आ गया, खाने में क्या बना है? वाइफ का रिप्लाई नहीं आता है। फिर वो किचन के अंदर जाता है, उसके कान के पास जाके खड़ा होता है और कहता है जानू मैं आ गया, खाने में क्या बना है? वाइफ बोलती है 4 बार से तो बोल चुकी हूँ कढ़ी चावल बना है। सर प्रॉब्लम वाइफ के साथ नहीं था, प्रॉब्लम इसके साथ था। तो हमको जो लगता है ना प्रॉब्लम एक्सटर्नल है, प्रॉब्लम इज़ नॉट एक्सटर्नल, प्रॉब्लम इज़ इंटरनल। सर आप चेक करो, कहीं ना कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। सर आप में से कितने जन जॉब पे हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड। ऑलमोस्ट 90%। सर हमारा 1 तारीख वाला माइंड और 2 तारीख वाले 25 तारीख वाले में गैप होता है, ये और नो। 1 तारीख को हम लोग सब पुष्पा बन के घूमते हैं और 25 तारीख को सब शिवल्ली बन जाते हैं। 1 तारीख को झुकता नहीं है, 25 को रुकता नहीं है। 1 तारीख को मैसेज आता है अकाउंट इज क्रिएटेड बाय दिस अमाउंट, और 25 को आता है प्लीज मेंटेन मिनिमम बैलेंस, ये और नो। सर हमारा 1 तारीख और 25 तारीख वाले में भी गैप हो जाता है। सर यहाँ पर 90% लोग केयूर भाई जॉब पे हैं। आप एक सर्वे कीजिएगा, इसमें से 80% लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं होगा मैंने कहा कमाते कितना है, खर्चा कितना करते हैं। सर 80% पीपल डोंट हैव अ रिकॉर्ड हाउ मच दे आर अर्निंग एंड हाउ मच दे आर स्पेंडिंग। और एक शायर कहते हैं कि अगर आप अपने पैसे को ये नहीं बताएंगे तुझे जाना कहाँ है, तो कुछ समय बाद ये मत पूछना तू कहाँ चला गया।
इफ़ यू डोंट टेल योर मनी वेयर टू गो, डोंट आस्क वेयर इट इज गॉन। सर ये टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है सर। द रीज़न वाई वी आर डिस्कसिंग ऑन अ फ्राइडे इवनिंग इज दिस अ टॉपिक कनेक्टेड टू लाइफ। ये तो सेंटर में है ना, पैसा सेंटर में, उसके आजू बाजू बाकी सब चल रहा है। सर आज आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन डिसाइड करता है? यस मैडम, कौन डिसाइड करता है बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है? इट्स मनी। मैडम पैसा होगा तो इंटरनेशनल स्कूल, नहीं होगा तो सरकारी स्कूल। यस। और लोग क्या ज्ञान देंगे पता है? बच्चों को महंगा स्कूल में मत पढ़ाओ, बच्चा बिगड़ जाता है। सर जिसको बिगड़ना है वो सरकारी स्कूल में बिगड़ सकता है। यस, इट्स रॉन्ग मैडम। जहाँ पर बजट का कमी होगा ना, वो आदमी डायलॉग ज़्यादा मांगता है। मैडम अगर आपके सर्कल में कोई लेडी है या कोई मेल है जो पैसे को लेकर डायलॉग मार रहा है ना, समझ लेना इसका पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है। जो आदमी लॉजिकली नेवर टॉक नेगेटिव और मनी। सर अभी मैं अहमदाबाद में था सर, एक आदमी 60 साल का ऑटो चला रहे हैं। मेरे को क्या बोलते हैं पता है? बोलता है धनंजय भाई, भले ही हमने ज़िंदगी में पैसा नहीं कमाया पर इज्जत बहुत कमाया है। इसको बनिया 10 रुपये का धनिया उधार नहीं देते, क्या करेंगे इज्जत का? मैंने बोला कि सर आप माइंड मत करना, कल आपका घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगा, आप हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ पर हॉस्पिटल में बोलेंगे डॉक्टर साहब मेरा इज्जत ले लो और बच्चे को ठीक कर दो, कर देगा? मैंने व्हाट आर टॉकिंग अबाउट सर। जहाँ पर पैसा काम आएगा देयर इज नो रिप्लेसमेंट। सर आज आपने संजीव सर कौन से ब्रांड का टी शर्ट पहना है, इट डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल लाइफ। यस और नो? सर आपने जो टी शर्ट पहना है डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल लाइफ। पैसा होगा तो रेमंड, नहीं होगा तो बस स्टैंड। इस बार आप समर वेकेशन में कहाँ घूमने गए थे, कौन डिसाइड किया था? इट्स योर फाइनेंशियल लाइफ। पैसा होगा तो सिंगापुर, नहीं होगा तो सोलापुर। यस और नो? सर आपका गाड़ी, घर, वेकेशन, बच्चे का स्कूल, कपड़ा, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ योर फाइनेंशियल लाइफ सर। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ योर फाइनेंशियल लाइफ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। कहीं ना कहीं वो तो डोमेन ही प्रोवाइड कर रहा है सर, आपका फाइनेंशियल लाइफ का डोमेन ही है। मैडम हमारा 1 तारीख और 25 तारीख 1 महीने गैप हो जाता है। दैट इज द रीजन वाई वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक। सर अभी मैं ये सेशन कर रहा था बैंगलोर में, तो संजीव सर एक 25 साल का लड़का क्या बोलता है पता है? बोलता है सर हम पैसे को लेके इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। और वही लड़का जो है ना 3 महीने पहले कॉल करके क्या बोल रहा है पता है? जो हो रहा है देखा नहीं जा रहा है। यस और नो? यू कांट से जो होगा देखा जाएगा, राइट सर? लॉजिकली सर आप जो बात कर रहे हैं ना सर, प्लीज अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू हैव टू टॉक विद लॉजिकल। सर आप मेरे को एक बात बताओ, आज से 30 साल बाद आप और मैं दोनों बूढ़े हो जाएंगे। यस भैया, एग्री करते हैं? आज से 30 साल बाद। और नियम क्या बोलता है पता है? जब आप बूढ़े हो जाएं आपका पैसा जवान हो जाना चाहिए। When you become old, your money should become young. That's the rule of money management. भैया जवानी में आप गरीब है तो नो प्रॉब्लम, यू हैव एनर्जी, यू कैन डू एनीथिंग, राइट? भैया आज ताकत है, कुछ भी कर लेगा। बुढ़ापे का गरीबी डेंजरस है, ना ही पैसा है और ना ही एनर्जी है, लाइफ बिकम ड्रेडफुल। दैट्स वेरी। और आदमी सर बुढ़ापे में 2 ही पिक्चर देखता है, कौन सा पता है? बागवान और अवतार। वो देख के रोता रहता है। और मुझे लगता है बागवान में ज़्यादा ही दिखा दिया है, पूरा का पूरा लॉट खराब निकलता है, ऐसा नहीं होता। ये सर नो, उसने पूरा का पूरा पेटी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दिखा दिया है। ऐसा रियल लाइफ में सर आपने देखा है? मैंने देखा ही नहीं। So you don't go by what social media says, you go by what your real experience is, right? तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, पहला our attitude is defined positive, second और सर ये जो वाइब्रेशन है ना आपको हर जगह दिखेगा। सर आपने कोटेशन पढ़ा है, वक्त से पहले नसीब से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। ये कहाँ देखा है? हॉस्पिटल के बाहर। सर वक्त से पहले ही मिलता है, नसीब से ज़्यादा ही मिलता है। कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है। इट वॉज नॉट खोना, इट वॉज बोना। इट इज़ ऑल बोना सर। सर मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था, आई मेट एन अंकल इन रायपुर। संजीव सर ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। सर मैं रायपुर में इवेंट कर रहा था, एक अंकल मेरे पास आए सेशन के बाद, उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया, उन्होंने अपने नाम के आगे लिखा है स्वर्गीय। सर आदमी जिंदा है, आपके सामने खड़ा है, नाम में क्या लिखा है? आप टेंशन में आएंगे ना, पहली बार किसी को सामने देख रहा हूँ, नाम में स्वर्गीय लिखा है। तो मैंने बोला अंकल आप माइंड मत करना, पहली बार किसी को देख रहा हूँ जो सामने खड़ा, नाम में स्वर्गीय लिखा है। मेरे को बोलते हैं धनंजय भाई मेरे को एक बात बताओ, जो आदमी भारत में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? और जो स्वर्ग में रहता है वो तो मैं तो स्वर्ग में रहता है, स्वर्गीय लिखा है। एंड लुक एट हिज एक्सटेंशन, उनका एक्सटेंशन सुनिएगा। वो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, ना माने तो मर के देख। मैडम वो कहते हैं 95% लोगों के साथ दिक्कत क्या पता है? ये जन्म को जीते नहीं है, अगला जन्म और पिछला जन्म के चक्कर में ये जन्म का सत्यानाश कर देते हैं। पीपल आर नॉट एंजॉइंग दिस बर्थ। मैडम वो इस जन्म को जी नहीं रहा है, उसको अगला जन्म और पिछला जन्म के चक्कर में ये जन्म उसको जीने ही नहीं दिया जा रहा है। मैडम अभी कौन सा युग चल रहा है? युग मैडम आप अभी कौन सा युग चल रहा है?
कलयुग चल रहा है, यस और नो? और अपने 5 साल के बच्चे को आप क्या बोलते हैं? अच्छा इंसान बन, माँ बाप का सेवा कर, बड़ों को इज्जत दे, और बाद में क्या बोलते हैं? बेटा कलयुग चल रहा है। बोलता है पापा आपका वायरिंग इश्यू है, आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, यस और नो? एक तो तुम बोलता है कलयुग चल रहा है, बाद में बोलता है अच्छा इंसान बन। कॉन्ट्राडिक्शन, राइट? मैडम, वी एक्चुअली आर लिविंग इन कॉन्ट्राडिक्शन। दैट द रीजन व्हाई यू डोंट क्रिएट वेल्थ एंड एंजॉय वेल्थ। मैडम, वेल्थ जो है ना, यहाँ का टॉपिक है। हर आदमी पैसा बनाएगा नहीं, और हर आदमी जो बनाएगा उसको मजे भी नहीं ले पाएगा। क्यों पता है? यहाँ पर प्रॉब्लम है। मैडम, मनी विल नेवर बी ए प्रॉब्लम। लोग मेरे को ज्ञान देते हैं ना, धनंजय भाई पैसा आदमी को बर्बाद कर देता। आंसर इज नो। सर, आपने कभी सुना है पैसा अपने आप दारू के अड्डे पहुंच गया है? सुना है उड़ के चला गया? कभी हुआ नहीं। तो एक आदमी ना लिकर शॉप के बाहर लिकर ले रहा था। अगर आप लिकर शॉप देखेंगे ना सर, ग्रिल लगा होता है और एक छोटा सा होल होता है, उसमें से बॉटल देता है। तो एक बेवड़ा ना दुकान वाले को क्या बोलता है? बोलता है सर इतना छोटा होल से बॉटल बाहर आ जाएगा? बोलता तुम बॉटल का बात करा, लोगों का खानदान परिवार सब बाहर आ जाता है। ये सर नो, ये बॉटल तो बहुत छोटा चीज। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम सर, व्हाट एटीट्यूड बिल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, अगर वो एटीट्यूड बिल्डअप नहीं होगा ना, ये हर चीज को एम्ब्रेस नहीं करेंगे। सर, आपने जब इन्वेस्टमेंट किया था, सर आपका गुड नेम प्लीज? राम सर, रामदास सर, प्लीज बैठिए सर। रामदास सर, आपने जब इन्वेस्टमेंट किया था, क्या आपको ये बताया गया था कि मार्केट ऊपर नीचे होता है? यस और नो? संजीव सर, ये था कि मार्केट ऊपर नीचे होता है? मैं हमेशा इन्वेस्टर को बोलता हूं कि जब आपको इन्वेस्टमेंट के समय पता था मार्केट ऊपर नीचे होता है, अब जब मार्केट नीचे में है तो अगर आप टेंशन में है तो किसके वजह से? मार्केट के वजह से, खुद के वजह से? आप देखिए सर, प्लीज अंडरस्टैंड एज अ इन्वेस्टर वॉलेटिलिटी क्यों अच्छा लगता है। आई विल गिव यू अ रीजन। सर, इन्वेस्टमेंट का फिलॉसफी क्या कहता है पता है? इन्वेस्टमेंट का एक फिलॉसफी कहता है, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ डिस्काउंटिंग। सर, ये रट्टा मान लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट समथिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग सुना है आपने? पावर ऑफ कंपाउंडिंग सुना है ना? देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड पावर ऑफ डिस्काउंटिंग। आई विल गिव यू एग्जांपल। मेरा एक दोस्त है सर, उसने 40 साल का एज में कुछ भी नहीं किया केयूर भाई, नो प्लानिंग, जीरो प्लानिंग। मेरे को बोलता है धनंजय भाई बाकी सबने 25 से में कर लिया, मैंने 40 तक कुछ भी नहीं किया। तो मैंने बोला कि तू ये सोच कि तेरा अभी एज 80 है, तू ये सोच तेरा 80 है और ऊपर वाले ने तेरे को मौका मिला है 40 साल में जाने का, तो अब चालू कर, तेरे को लाइफ में आसान हो जाएगा। ये सर नो, जब लेट हो जाए ना, आप ये सोचो कि आपका एज 20 साल ऊपर हो गया है। सो फॉर एग्जांपल सर, आपका एज अगर 35 है और आपने भी कुछ प्लानिंग नहीं किया है और आपके दोस्त ने 25 से कर लिया है, तो आप ये सोचो कि आपका एज 55 हो गया है और ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है वापस 35 में जाने का और वहाँ से प्लानिंग चालू हुई। दिस कॉल्ड पावर ऑफ डिस्काउंटिंग। पॉइंट नंबर 2, सर कंपाउंडिंग कब काम करता है पता है? जब स्टार्टिंग में डिस्काउंटिंग होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कंपाउंडिंग तभी काम करेगा जब स्टार्टिंग में डिस्काउंटिंग होगा। आई विल गिव यू एग्जांपल। मैडम, आपने पैसा डाला और आपके डालने के बाद मार्केट से, सर आवाज़ मत कराइएगा ना, आपने पैसा डाला और पैसा डालने के बाद मार्केट बढ़ता गया, आपको फ़ायदा नहीं होगा। सर, इन्वेस्टमेंट करने के बाद, माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, सर आप लोग जितने जन यहाँ बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद मंदिर में दीपक लगा लीजिए कि एटलीस्ट 5 साल तक मार्केट नीचे रहे कि फ्लैट रहे। सर, हम जब पैसा जमा करते हैं तब मार्केट नीचे चाहिए और जब पैसा निकालते हैं तब मार्केट ऊपर चाहिए। दैट्स द रूल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो सर, अगर आप 3 साल से 2 साल से SIP कर रहे हैं और रिटर्न नेगेटिव दिख रहा है, आपको फायदा ज़्यादा है। ये सर नो, सर इन्वेस्टिंग का थ्योरी क्या बोलता है पता है? इन्वेस्टिंग इज डिस्काउंटिंग फ्यूचर। सर, इन्वेस्टमेंट का थ्योरी कहता है इन्वेस्टिंग इज डिस्काउंटिंग फ्यूचर। सर, आपका क्या नाम है? रेड टी शर्ट भाविक भाई, आपने 2026 में पैसा डाला है, राइट? 10 साल के लिए। पैसा कब निकालेंगे? 10 साल बाद, मतलब 2036, राइट? रामदास सर, उन्होंने पैसा डाला 2026 में, पैसा कब निकालेगा? 2036 में। संजीव सर, क्लियर? तो सर, आज US का कौन प्रेसिडेंट है ना, सबको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2036 में कौन है, इससे आपको फर्क पड़ेगा। सो मैं इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग इज डिस्काउंटिंग फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट में संजीव सर आज क्या हो रहा है, रामदास सर आज क्या हो रहा है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब पैसा निकालेंगे तब क्या हो रहा है, उससे फर्क पड़ता है। और लोग किसका टेंशन ले रहे हैं, आज क्या हो रहा है। मैडम, इफ आई एम इंटरेस्टेड फॉर नेक्स्ट 10 years, आई डोंट लुक एट द मार्केट फॉर नेक्स्ट 10 days, yes or no? इफ योर कमिटमेंट इज फॉर 10 years, हाउ डू यू लुक एट द मार्केट? भाभी भाई, हम कैसे पैसा कमाएंगे बताइए, yes or no? और लोग उसकी चिंता करें जो ले रहे हैं। आज सर ने कहा ना स्टार्टिंग में, इन्होंने मार्केट नीचे देखा ही नहीं, इसलिए नहीं देखा क्योंकि उनका टाइम फ्रेम बहुत क्लियर है। और ओनरशिप, सर इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट ओनरशिप। अभी मैं एक TV शो कर रहा था 18 Now के लिए, तो एक एंकर मुझे क्या पूछते हैं पता है? सर, मैक्सिमम इन्वेस्टर लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते हैं? मैंने बोला इसलिए नहीं बना क्योंकि वो इन्वेस्टर होते हैं। बोलता मतलब? मैंने बोला मैक्सिमम इन्वेस्टर इसलिए नहीं पैसा बनाते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टर होते हैं।
तो उन्होंने बोला सर समझ में नहीं आया। मैंने बोला सर मैडम इन्वेस्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? इन्वेस्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? निवेशक। यस और नो? मैंने बोला मैडम मुझे कोई सबसे प्रॉब्लम है, वो निवेश करने के बाद शक करता है। यस और नो? निवेशक। मैडम अगर आपने आज से 1-2 महीने पहले गोल्ड का एक चेन लिया होता 1,75,000 में या 1,70,000 में, आज 1,40,000 है, आप में से कितने को मन कर रहा है गोल्ड बेच दे? एनीवन इन दिस हॉल? नॉट इवन अ सिंगल वन, राइट? मन में क्या चल रहा है पता? 10,000 और नीचे आएगा तो एक और ले लेंगे। यस और नो? यू नो वाई? क्योंकि गोल्ड ने हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हम बन गए ओन वेस्टर। अगर पैसा का निर्माण करना है तो यू हैव टू बिकम ओन वेस्टर, OWN। जब हम इन बनते हैं ना तो हम आउट की बात करते हैं। कोई भी आदमी संजीव सर जब गोल्ड लेता है ना, कभी ये नहीं सोचता है कि 5 साल बाद बेच दूंगा। क्या सोचता है? जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन को पास करेंगे। यस और नो? मैडम कभी भी यू डोंट बाय गोल्ड टू सेल इट आफ्टर 5 years। यस, यू ओन इट, राइट? आपके अंदर में ओनरशिप की भाव आता है कि कहीं ना कहीं मैं ओन करता हूँ। लेकिन जब इक्विटी का क्या भाव आता है नीचे, तो हमको क्या लगता है? निकल जाता है। और सर याद रखिएगा, जब मार्केट नीचे होता है ना, वो सबसे कम रिस्कियस फेज होता है पैसा डालने का। आई गिव यू एग्जांपल, कनेक्ट होगा। अभी निफ्टी कितना चल रहा है भाविक भाई, अगर हम मार्केट ट्रैक करते हैं तो? अभी निफ्टी कितना चल रहा है रामदास सर? 24,000। संदीप सर 24,000 के आसपास। केयूर भाई 24,000। अब देखो केयूर भाई का प्लानिंग कितना स्ट्रॉन्ग, किस तरीके से करते हैं, कितना ईजी सब्जेक्ट, कितना आसान बनाते हैं। निफ्टी चल रहा है 24, आपके सामने में है, राइट? और सर ने जो डेटा दिया है, पिछले 45 साल का मार्केट का रिटर्न है 13 से 14%। आप नेट में चेक कीजिएगा, लास्ट 45 ईयर्स। 1 साल का होता तो आप मेरे को आर्ग्यू कर सकते हैं, पिछले 45 साल, लास्ट 45 ईयर्स का एवरेज रिटर्न कितना है? 13 से 14%। चलो 12% के हिसाब से लेते हैं सर, लेट्स टेक इट एट 12%, राइट? 12% के हिसाब से लेते हैं। आज 24 चल रहा है, एट 12% कंपाउंडिंग, एट 12% कंपाउंडिंग निफ्टी विल बी अराउंड 74,000 लेवल आफ्टर 10 ईयर्स। आप चेक कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ ना, मैथमेटिक्स निकालिएगा। केवल भाई आज चल रहा है 24,000, 10 साल बाद कितना है लेवल? 74। गैप कितना हो गया रामदास सर? 50,000। टुडे इज 24,000, आफ्टर 10 years we are expecting 74. What is the gap? Everything is subject to market risk, there is no guarantee. I am talking about based on data. 24 से आज चल रहा है, 10 साल बाद मैडम 74। कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है? धनंजय भाई गिर गया तो यस गिर सकते हैं, चलो भाभी भाई गिरते हैं। 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट, 4000 पॉइंट। जीरो तो नहीं करेंगे ना, जीरो करेंगे तो फिर बात ही नहीं करें, फिर यू डोंट टॉक अबाउट दिस टॉपिक। मैडम गिरने को 4000 पॉइंट है, पाने को 50,000 पॉइंट है। और कौन सा मैथमेटिकल फार्मूला बोलता है? व्हेन द रिस्क रिवार्ड रेशियो इज 50,000:4 वी डोंट टेक द रिस्क। कितना सिंपल है ना सर। जिसको 10 साल दिख जाएगा ना, उसके लिए इन्वेस्टमेंट आसान है। जिसको 10 साल नहीं दिखता है ना सर, उसको इन्वेस्टमेंट आसान नहीं है। वो कहते हैं ना, किसी को पत्थर में भगवान दिखाई देता है, किसी को भगवान में पत्थर। आप देख क्या रहे हैं? आपका भूख है कि नहीं? ये जो ग्रोथ है ना मैडम, इन्वेस्टमेंट जो है ना, ये भूख का इज नॉट फॉर एवरीवन सर। इन्वेस्टमेंट इज द टॉपिक फॉर वेरी सिलेक्टेड सेट ऑफ पीपल। केवल भाई हर आदमी का टॉपिक ही नहीं है। मैं बार बार इंडिया में कहता हूँ, हर आदमी को इन्वेस्टमेंट से मोहब्बत नहीं होगा सर। ये भूख का टॉपिक। आपकी भूख कितनी है? मैडम मेरी 2 बेटी है, दोनों को न्यूजीलैंड भेजना है, 6 करोड़ का खर्चा है। मेरा कजिन है, उसको इंडिया में पढ़ाना है, दैट इज नॉट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैडम इंडिया में पढ़ाना है, इंडिया में पढ़ाइए, जहाँ पढ़ाना है। आपका भूख डिसाइड करेगा भागना कितना है। तो एक बार क्या होता है केवल भाई, अकबर का ना 50th बर्थडे होता है। तो मैडम जब 50th बर्थडे होता है ना, तो इस बार प्लान होता है कि इस बार ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। बहुत राज्य को राजा से राजा को बुलाएंगे और इतना सारा खाना और लजीज पकवान बनाएंगे, लोग पूरा एकदम पागल हो जाएंगे, क्या सेलिब्रेशन था। तो प्लानिंग हो गया, सब कुछ हो गया, बर्थडे आ गया। अब अकबर जो है ना घूम रहे हैं सबसे फीडबैक लेने के लिए, कैसा लग रहा है। बोलता है यार जहाँ पना क्या खाना है, मज़ा आ गया, उंगलियां चाट लिए लोगों ने, ये है ना, बोले इतना वैरायटी, इतना ऑप्शन आज तक अपने लाइफ में नहीं देखा है। सब अच्छा चल रहा था। पीछे से एक आदमी कमेंट करता है, सर अगर एक चीज़ होता तो मज़ा आ जाता। अब ये बोलता है इतना आइटम बनाया, इतना लोगों को बुलाया, शेफ़ को बुलाया, लोग इतना अच्छा रिव्यू दे रहे हैं और पीछे से कोई ज्ञान दे रहा है, एक आइटम होता तो मज़ा आ जाता। तो पीछे घूम के देखते हैं कौन खड़ा है, बिरबल। बोलता है बिरबल तूने अपना ज़िंदगी में कभी इतना खाना देखा है? बोला नहीं सर मैंने इतना खाना तो नहीं देखा है, लेकिन फिर भी कहता हूँ एक चीज़ होता तो मज़ा आ जाता। बोला बताएगा क्या होता तो मज़ा आ जाता? बोलता है सर अगर भूख होता तो मज़ा आ जाता। सर आपके पास खाना कितना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका भूख कितना है। ये सर नो, भूख है तो इम्पोर्टेंट है सर। केवल भाई प्लान कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। आपको भूख है कि नहीं सर? मेरे को भूख है सर, मम्मी पापा को वर्ल्ड टूर घुमाना है,
आप जैसे मिंत्रा हम खरीदते हैं ना, ऐड टू कार्ट होता है ना सर, आपकी लाइफ का ऐड टू कार्ट क्या है, आपकी लाइफ का लिस्ट क्या है सर? अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे ना सर तो ये सब एक्साइट ही नहीं होगा। कोई लोग कहते हैं कि धनंजय भाई 2 वक्त का खाना और 2 जोड़ी कपड़ा चाहिए, वो भी लाइफ अच्छा है सर, दैट इज नथिंग रॉन्ग। संजीव सर कोई आदमी गलत नहीं है सर, ये एस्पिरेशन, रामदास सर इट इज एस्पिरेशन टॉपिक। इफ यू हैव एन एस्पिरेशन कि मैडम को वर्ल्ड टूर कराना है, यू ट्राई टू अर्न मोर मनी आउट ऑफ दैट, यस और नो? संजीव सर अगर आपको वर्ल्ड टूर करना है तो प्लानिंग वैसे ही करेंगे, जिसको नहीं करना है वो गलत नहीं है सर। अभी लोगों के साथ दिक्कत है, अंबानी की शादी में एक बार धनंजय भाई कितना खर्चा कर दिया, मैंने बोला तू तो उधार लेके खर्चा करता, उसको कमेंट दे रहा है सर जो आदमी उधार लेके खर्चा कर रहा है किसको गाली दे रहा है, खर्चा कितना कर दिया। माइंड सेट है ना, इन्वेस्टमेंट टॉपिक ऑफ लाइफ। तो एज अ इन्वेस्टर सर 4 रूल फॉलो करना है सर। अगर ये 4 रूल फॉलो करते हैं हर वॉलेटिलिटी को आप इंजॉय करेंगे। पहला रूल है मैंने जो बोला पावर ऑफ डिस्काउंटिंग। पावर ऑफ डिस्काउंटिंग का थ्योरी है स्टार्टिंग में डिस्काउंट मिलेगा तब ग्रोथ ज़्यादा, उसको बोलते हैं पावर ऑफ डिस्काउंटिंग। यस, गॉट द पॉइंट। सेकंड इज आप कहाँ पर हैं फर्क नहीं पड़ता है, आप सोच लीजिए कि आपका जितना भी एज है +20 कर दीजिए और पीछे आ जाइए, आपको रियलाइज होगा एवरी टाइम इज़ अ ग्रेट टाइम टू स्टार्ट। और प्लानिंग एटलीस्ट आप लोग जितने जन बैठे हैं ना एटलीस्ट 85 तक कीजिएगा। आप लोग जितने जन बैठे हैं डोंट प्लान बिलो 85। अभी रामदास सर लोग मुझे क्या बोलते हैं पता है, धनंजय यू आर टॉकिंग अबाउट 85, अभी जो हेल्थ का कंडीशन है 75 तक चलेंगे नहीं, पता नहीं भैया, ये पूछते हैं लोग, बोलते हैं कि 75 तक। मैंने बोला अंकल 75 तक लग रहा है फिर भी 85 का प्लानिंग करो। बोलता है क्यों? मैंने बोला अंकल आपने 75 का प्लानिंग किया और आपका विकेट 75 तक नहीं गया तो ज़्यादा लोचा हो जाएगा, ये सर नो। अगर आपने 85 का प्लानिंग किया और 75 में चले गए तो टेंशन नहीं है, 75 में प्लानिंग करके 75 में नहीं जाना है टेंशन। और इंडिया में अभी भी हस्बैंड और वाइफ में 5 साल का गैप होता है, यस अभी भी हस्बैंड वाइफ एज इज देयर इज 5 years gap. So when you plan for yourself, add 5 years for your wife. So if you are 85, your wife will be 80, yes or no? अगर आप 80 साल का है तो आपकी वाइफ को 85 होगा। सर प्लीज़ क्रिएट अ प्रोविजन फॉर योर स्पाउस। मैडम एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर जो मैंने देखा है क्योर भाई, और इसमें क्योर भाई बहुत की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है सर। एक टॉपिक है उसको बोलते हैं वो मनी एम्पावरमेंट। सर आपने सुना है मैडम आपने वुमेन एम्पावरमेंट सुना है? वुमेन एम्पावरमेंट सुना है ना? वुमेन एम्पावरमेंट से बड़ा टॉपिक क्या पता है? वो मनी एम्पावरमेंट, वो मनी पावरमेंट। आई विल गिव यू एग्जांपल मैडम, बाकी सब टॉपिक में, बाकी जितने भी टॉपिक है ना, महिलाएं आगे हैं, जब मनी की बात आती है ना तो थोड़ा सा वो उनको डर है, डर नहीं है एक्चुअली, उनके पास एक लग्जरी है। कोई भी लेडी को ना अगर आप शादी के पहले पूछेंगे ना पैसा कैसे मैनेज करते हैं तो क्या बोलेंगे पता है? मेरे पापा से पूछिए। और शादी के बाद पूछते हैं तो क्या बोलती हैं? मेरे पति से पूछिए, यस और नो? शादी के पहले पिता और शादी के बाद पति। और रूल कहता है जब दोनों ही लाइफ में नहीं होना तो तीसरा फाउंडेशन बनता है पैसा। जिस लेडी के लाइफ में ना ही पिता है और ना ही पति है, तीसरा फाउंडेशन है पैसा। सर मैंने बहुत सारे कोविड में देखा है मैडम, हस्बैंड के वाइफ के पास घर है, ज्वेलरी है, कैश फ्लो नहीं है, गाड़ी ज्वेलरी घर है लेकिन कैश फ्लो नहीं। सर आप लोग जितने जन यहाँ बैठे हैं ना, मेरा रिक्वेस्ट है आप जितना महीने का घर खर्चा देते हैं ना मैडम का, उसको ऑटो मोड कर दीजिए। रामदास सर यू हैव टू गेट इनटू ऑटो मोड। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज मेरा घर खर्चा है 2 लाख रुपया, माई वाइफ इज़ अ होम मेकर, घर को मेंटेन करती है, मैनेज करती है, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, ताकि वो काम करे, घर मैनेज करे, ताकि मैं आराम से बाहर काम कर सकूँ। यस और इट्स अ पार्टनरशिप, कोई ना कोई रोल प्ले करना पड़ेगा ना, किसी को रोहित शर्मा का रोल करना है नॉट। मैडम जितने जन यहाँ सर बैठे हैं, सर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इंश्योर आपका जो खर्चा है ना महीने का खर्चा, वो इंश्योर करिए कि वाइफ को बाय डिफ़ॉल्ट जाता रहे। तो मेरा सपोज महीने का 2 लाख का खर्चा है, राइट? अब मैं आज काम कर रहा है तो मेरा लाइफ कैश फ्लो से चल रहा है, कल काम करेगा कल पैसा मिलेगा, नहीं काम करेगा नहीं मिलेगा, ये सो ना, यानी मेरा ज़िंदगी चल रहा है कैश फ्लो के ऊपर। यानी इस केरू भाई मैं इस महीने काम करेगा तो अगले महीने 2 लाख रुपये देगा। कोई महीने में काम नहीं किया या मेरे को कुछ हो गया तो पैसा नहीं आएगा उसको। तो मैंने क्या प्लानिंग किया कि सपोज सर मैंने 1 करोड़ रुपया डाल दिया इन्वेस्टमेंट में, एग्जाम्पल देता हूँ, 1 करोड़ का महीने का 60,000 रुपया जो है बाय डिफ़ॉल्ट बाइक के अकाउंट में जा रहा है। कल में रहे नहीं रहे 60,000 इज़ अ कैश फ्लो दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट फॉर माई स्पाउस, ताकि एटलीस्ट जो घर खर्चे का जो मेंटेनेंस खर्चा है ना, किसी के सामने हाथ फैलाने का ज़रूरत नहीं पड़े। ये सुनो सर मैडम, हस्बैंड जाने के बाद वाइफ ना ही घर बेचेगा, ना ही गोल्ड बेचेगा, ना ही गाड़ी बेचेगा, यस, ना ही घर, मतलब इमोशन है ना सर, घर इमोशन, घर कैसे बेच देगा? ज्वेलरी भी बेचेगा नहीं और गाड़ी भी नहीं बेचेगा। द प्रॉब्लम इज़ विद कैश फ्लो। जितने यहाँ हस्बैंड बैठे हैं इसको बोलते हैं वो मनी पावरमेंट। जितने यहाँ पर बैठे हैं सर, स्टार्ट कीजिए आप 10 लाख से,
आप महीने का 7,000 चालू कीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप 1 करोड़ डालो सर। आप लोग जितने जन यहाँ बैठे हैं ना, स्टार्ट विद 10 लाख रुपीज़। एक बार केयूर भाई की टीम से बात कीजिए कि आप वाइफ के लिए कैश फ्लो जनरेट कीजिए। अभी सपोज महीने का 1 लाख का इनकम आपका खर्चा है ना, आप चालू कीजिए 20,000 से, और गोल रखिए कि 5 साल तक कर देना है इसको 1-1.5 लाख। इसको बोलते हैं SWP, आपने सुना है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। इतना सुकून मिलेगा ना सर, आपको लगेगा कि माई फैमिली इज टेकन केयर फ्रॉम फाइनेंशियल। सर मैं ट्रैवल करता हूँ 300 दिन, आई ट्रैवल फॉर 300 डेज, एवरी ट्रिप इज अ चैलेंज। यस सर, आज सुबह मेरा फ्लाइट टेक ऑफ हो रहा था मैडम, रनवे में रुक गया आज सुबह का ही, फिर हम वापस गए बे में, फिर 1.5 घंटा लगा सर टुडे मॉर्निंग। एवरी ट्रिप इज अ टेंशन, येस और नो? व्हाट आई एम सेइंग इज एवरी ट्रिप इज अ चैलेंज सर। व्हाट आई एम सेइंग इज मैडम, हम हमेशा क्या सोचते हैं पता है, तकलीफ हमेशा पड़ोसी के साथ होगा। नहीं सर, हम भी तो किसी के पड़ोसी हैं। ये सुनो, हम भी तो किसी के पड़ोसी है ना सर, पड़ोसी हमारा भी तो कोई है। प्लान है इंश्योर दैट कि सर कैश फ्लो मैनेजमेंट। केयूर भाई ये वाली जो एजेंडा है ना, प्लीज़ इंश्योर जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट हैं सर, ये वाले टॉपिक पे बात कीजिएगा। और कोई आज बात करे नहीं करे सर, आपकी मर्जी है, बट मैडम का घर खर्चा शुड बी ऑन अ बाय डिफॉल्ट मोड। बाकी आपका कितना प्लॉट है, कितना इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ इमैटेरियल फॉर मी सर। आपका कितना लैंड है, ये है, कितना इंश्योरेंस है, वो बाकी सब बाद में है। लेकिन वाइफ को अगर आपने कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं किया ना सर, आप वो मनी एम्पावरमेंट नहीं कर रहे हैं। आप वुमेन एम्पावरमेंट की तो बात तो करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट ये वो फर्क नहीं पड़ेगा सर। मनी से पावर दे दीजिए सर, मनी वाला पावर विल बी एन इंपॉर्टेंट एजेंडा। तो 3-4 चीज़ हम फोकस करेंगे सर। पहला, आप लोग जितने जन बैठे हैं, अगर आपको रियल वेल्थ क्रिएशन करना है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी, फर्स्ट इज इन्वेस्ट विद अ गोल। और केयूर भाई दिक्कत क्या है पता है, सबका गोल है सबका गोल, एक हिंदी वाला गोल और दूसरा इंग्लिश वाला गोल। हिंदी वाला गोल इज GOOL और इंग्लिश वाला गोल इज GOAL। मैडम दैट A स्टैंड फॉर एडवाइजर। सर इन्वेस्टमेंट में ज्ञान का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सर। अभी लोग मुझे क्या बोलते हैं, धनंजय भाई इतना सारा ऐप है, इतना सारा यूट्यूब है ये। सर प्लीज़ अंडरस्टैंड, इतना ऐप और इतना यूट्यूब आपसे बात करता है, आप उनसे बात नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट 2-वे कम्युनिकेशन, येस और नो? मैडम सब मेरे से बात कर रहा है, अगर मैं किससे बात नहीं कर पा रहा है, वो भी तो बड़ा गैप है ना सर इन इन्वेस्टिंग। और मैं जो बात कर रहा है ना मैडम, आई एम स्पेसिफिकली फॉर ए ऑडियंस। जैसे मैडम अगर मैंने आपको बोला कि आप इस फंड में डालिए, वो आपको लेके है ना, एक सवाल पूछता हूँ उसका आंसर दीजिएगा। सर दवाई कौन सा अच्छा होता है, सर मेडिसिन कौन सा अच्छा होता है? यस सर, मेडिसिन कौन सा अच्छा होता है? मेडिसिन हाँ, वो डिपेंड करता है बीमारी क्या है, यस और नो? वैसे सर फंड अच्छा है, लोग पूछते हैं ना धनंजय भाई फंड कौन सा अच्छा है। सर फंड अच्छा नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है कि आपको ज़रूरत क्या है, शॉर्ट टर्म में है कि लॉन्ग टर्म में। एग्जांपल देता हूँ मैडम, यहाँ से रेलवे स्टेशन कितना दूर है सर? वापी रेलवे स्टेशन कितना दूर है यहाँ से? कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट भैया। आप कैसे जाएंगे रेलवे स्टेशन? बाइक में, ऑटो में, कार में। और यहाँ से अगर आपको मुंबई जाना है तो ट्रेन या फिर कैब, और यहाँ से अगर लंदन जाना है तो मुंबई से फ्लाइट। येस और नो? योर डेस्टिनेशन चेंजेस, जो व्हीकल चेंजेस। तो जो पैसा मुझे शॉर्ट टर्म में चाहिए उसका रिक्वायरमेंट कुछ और होगा, जो लॉन्ग टर्म में चाहिए कुछ और होगा। मैं वो बोलूँ कि आप रेलवे स्टेशन जाइए फ्लाइट से, जाना बेवकूफ़ी है। वो धनंजय भाई टेक ऑफ करने के बाद लैंडिंग करना पड़ेगा। तो व्हाट वर्क्स फॉर शॉर्ट टर्म विल नॉट वर्क फॉर लॉन्ग टर्म, येस और नो? इसलिए मैं बोला ना, इन्वेस्टमेंट इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन। भाविक भाई, इन्वेस्टमेंट इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इज अबाउट प्रिपरेशन। अगर आपने अपना रास्ता बता दिया कि मेरे को जाना कहाँ है, केयूर भाई की टीम उसी पे काम करेगी। आपने मैडम बोला 7 साल, यू विल वर्क ऑन 7 years। यस, इंपॉर्टेंट इज दिस सर। आपको कहीं ना कहीं सर, आप लोग जो रात को दही जमाते हैं ना, दही जमाते हैं, उसमें क्या करते हैं पता है? क्या करते हैं बताइए? थोड़ा सा उसको वार्म करते हैं, जावन डालते हैं, यस, उसके बाद छोड़ देते हैं, सुबह जम जाता है। हम क्या करते हैं पता है? हर 1-1 घंटे बाद चेक करते हैं जमा है कि नहीं जमा है, और तब तक हमारा दिमाग का दही जम जाता है। ये सर नो, प्रॉब्लम ये है मैडम, आपने केयूर भाई को दे दिया है दही जमाने के लिए, पर यार ढक्कन खोल के देख रहे हैं जमा है कि नहीं जमा है। फिर उनका दही जमाते हो, मेरा दही और खुद का। इन्वेस्टमेंट जो है ना, दही जमाने वाला है सर। आपने दही नहीं जमाया ना, उस इन्वेस्टमेंट इन लाइफ की तरह है सर। आप बताओ ना सर। सर जो चावल जो बॉयल करते हैं सर, जो सीटी ये खिचड़ी बनता है ना मैडम, कितना सीटी चाहिए? 3 से 4, राइट? बस जितना सीटी चाहिए आपको खिचड़ी को, उतना चाहिए इन्वेस्टमेंट को। वो 3 से 4 साल का सीटी बजाएगा तो आपको धंधा अच्छा मिलेगा। आप एक ही सीटी में जो है निकाल रहे हैं ना, इसलिए आपका कच्चा दिख रहा है। समझ में आया सर? मैं बोला ना, इन्वेस्टमेंट और लाइफ इज़ वेरी कनेक्टेड सर। इन्वेस्टमेंट इज जस्ट लाइक खिचड़ी। 4 सीटी का इंतजार कीजिए सर, एक सीटी में खोल देंगे तो आपका सीटी बच जाएगा। ये सर नो, दैट इज हाउ इट इज। कितना सिंपल टॉपिक है सर। मैडम कितना सिंपल है ना सब्जेक्ट।
हम इसको कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। जब उसको बोला है कि रात को सो के सुबह देखने का है तो बार बार चेक करने का ज़रूरत नहीं है। दैट्स कॉल्ड गोल बेस्ड। अभी एक मैं सेशन कर रहा था सर, इन्वेस्टर क्या बोलते हैं सर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोलते हैं, धनंजय सर मैंने ना 10 लाख रुपया डाला था 1 साल पहले, आज 9 लाख रुपया हो गया, क्या करना चाहिए? कितना डाला सर? 10 लाख। आज कितना हो गया भाविक भाई? 9 लाख। क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला सर अगर ये 10 लाख 11 लाख होता तब क्या करते? बोलता है कुछ नहीं। मैंने बोला आपको वही करने का है ये जो बोला है ना वही करने का है। ये सर नो सर, आप बोल रहे हैं कुछ नहीं, भाई कुछ नहीं करना है सर। योर गोल इज 40 lakhs 50 lakhs, मार्केट इज अप बाय 1 lakh 2 lakh, डजंट मैटर सर। व्हेन यू हैव कमिटेड 10 years, स्टे कमिटेड। जो वादा आज कर रहे हैं वो वादा मेंटेन कीजिए सर। हम अपने वादा से डेविएट कर जाते हैं क्योंकि सर मनी इमोशन है। भारत में ना पैसा इमोशन है मैडम। जब पैसा टूटता है ना आदमी लॉजिकली बात ही नहीं कर पाता है। सर आपने कोई बात बताइए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल यूज़ करना चाहिए? कितने जन नहीं करते हैं? सब करते हैं, बताइए सर। सबको पता है सर, ऐसा कबीर भाई को ऐसा है जो इसको नहीं पता है। एवरीवन नोज कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल यूज़ करना नहीं चाहिए। वो तब तक पता है जब तक गाड़ी नहीं चला रहे। वो जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, यू आर नॉट थिंकर, यू आर फीलर। जब गाड़ी चलाते हैं ना, स्टीयरिंग हाथ में रहता है ना, तब आपका सोचने का ताकत खत्म हो जाता है, यू बिकम फीलर। और जब आदमी फीलर होता है ना तो डिसीजन गलत ले लेता है। वैसे इन्वेस्टमेंट में ना आपको चाहिए एडवाइज़र जो थिंकर पीछे बैठा है। गाड़ी आपका है, पैसा आपका ना, आप फीलर हैं। अगर फीलर के साथ थिंकर नहीं रहेगा ना तो एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा। येस और नो, दैट इज व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज। योर गोल इज हैव टू डिफाइन कि मैं कर क्या रहा है। पॉइंट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका खबर देख के पैसा नहीं बनेगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल सर। संजीव सर अभी एक न्यूज़ आया, अभी आप मोबाइल में चेक करेंगे, अभी न्यूज़ आया, आप जिस एरिया में बैठे हैं ना वहाँ पर एयरपोर्ट आने वाला है, उसका ज़मीन का रेट क्या होगा? आप जिस एरिया में अभी एयरपोर्ट आने वाला है, ब्रेकिंग न्यूज़, इसका ज़मीन का रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। येस और नो? फ़ायदा किसको होगा? जिसने आगे से लिया है कि जो आज लेगा? बस यही मैं आपको समझा रहा हूँ सर। इन्फॉर्मेशन से पैसा नहीं बनता है, प्री फॉर्मेशन से पैसा बनता है। फिर से रिपीट करता हूँ, इन्फॉर्मेशन से पैसा नहीं बनेगा, प्री फॉर्मेशन से। मैडम अगर किसी ने आपको 2021 में बोला होता ना कि सोना ले लीजिए, आप उसका पैर पकड़ लीजिए, और जो 2026 में बोल रहा है उसका गला पकड़ लीजिए। ये सर नो, कब क्या पकड़ना इंपॉर्टेंट है सर। गुजराती में बोलते हैं ना भगवान भाव भगवान छे। गुजराती में हम कहते हैं भाव भगवान छे, वो कहते हैं भाव ही भगवान होता है। गलत भाव में जो चीज़ लिया हुआ सब बेकार है। एक कहावत है, इंसान सोना भी गलत भाव में लेके नुकसान कर देता है, और कबाड़ी कचरा भी सही भाव में लेके प्रॉफिट बेच देता है। इट इज़ नॉट व्हाट यू आर बाइंग, इट इज़ एट व्हाट प्राइस यू आर बाइंग। सर लास्ट 2 साल से मार्केट नहीं चल रहा है, पता है संजीव सर, रामदास सर, यू आर सेइंग लास्ट 2 साल से मार्केट नहीं चलना है। 24% डिस्काउंट एट 12% एक्सपेक्टेड, यानी 2 साल नहीं चला मतलब 24% डिस्काउंट, और उस लेवल से 10% और डाउन है। 24 और 10 कितना हो गया? 36%। येस और नो? जो चीज़ 100 रुपये का था आज हमको 60 रुपीज़ में मिल रहा है। दैट इज़ मैथमेटिक्स। समझ में आया? हर साल हमारा टोन चेंज हो जाता है सर। अभी 2026 में लोग क्या बोल रहे हैं? इंटरनेशनल इक्विटी। 2025 में गोल्ड बोल रहे थे, 2024 में स्मॉल कैप बोल रहे थे, 2023 में बिटकॉइन बोल रहे थे। ये सर नो, हमारे साथ क्या होता है उसको बोलते हैं रिसेंसी बायस। हमको जो अभी बढ़ता है ना, हमको लगता है उसको ले लेना चाहिए। सर जो चीज़ का खबर आ गया है उसका रेट नहीं बढ़ेगा, ये रूल याद रखिएगा। इन्फॉर्मेशन से पैसा नहीं बनेगा, किससे बनेगा? प्री फॉर्मेशन से। एवरीथिंग इज प्री फॉर्मेशन के बाद इन्फॉर्मेशन डिसाइड करेगा भाव क्या होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर संजीव सर आपने एक ज़मीन लिया है और कल सुबह खबर आया कि आपका बाजू वाला प्लॉट अमिताभ बच्चन ले रहे हैं, रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। और उसके एक दिन बाद खबर आया कि वो कैंसिल हो गया है, बाजू में कब्रिस्तान बनने वाला है। बताइए, देखिए, तो आपका ज़मीन का रेट नहीं है सर, खबर का रेट है। येस और नो? योर लैंड डजंट हैव एनी वैल्यू। द वैल्यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन, व्हाट इन्फॉर्मेशन कम्स, वो चीज़ आने के बाद खबर आएगा। और एक बहुत अच्छा कहावत है, गुड न्यूज़ एंड गुड टाइम विल नेवर कम टुगेदर। गुड न्यूज़, गुड प्राइस विल नेवर कम टुगेदर। जब भाव अच्छा है मतलब खबर अच्छा नहीं है, और जिस दिन खबर अच्छा आ जाएगा उस दिन भाव अच्छा नहीं मिलेगा। लोग मेरे को बोलते हैं धनंजय भाई अभी मैं 24 में निकल जाता हूँ, 22 में एंटर कर लूँगा। मैंने बोला ये पेन पेपर में अच्छा लगेगा, और ये 24 का 26 होगा ना, इस जन्म में आप एंटर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में दुख तो सबको होना है सर। इन्वेस्टमेंट का एक थ्योरी है, भाविक भाई उसको बोलते हैं टाइमिंग ऑफ योर दुख। रामदास सर, देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड टाइमिंग ऑफ योर दुख, वंडरफुल थ्योरी। एग्जाम्पल, रामदास सर आपने अपना पोर्टफोलियो बेच दिया 24,000 में,
और मैंने खरीद लिया. यू आर अ सेलर, आई एम अ बायर. संजीव सर केस स्टडी क्लियर. रामदास सर ने कितने बेचा है? 24,000. मैंने खरीदा भाविक भाई 24,000 में. सर 1 महीना बाद मार्केट हैज़ बिकम 22,000. आपको कैसा लगेगा? यू विल फील हैप्पी कि यू हैव एग्जिटेड एट द राइट टाइम. आई विल फील सैड कि मैंने गलत टाइम में एंटर कर लिया, राइट? आज से 10 साल बाद आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा कि मैंने गलत टाइम पे दिया. मुझे कैसा लगेगा? बस दैट इज कॉल्ड टाइमिंग ऑफ योर दुख. मैडम इन्वेस्टमेंट में दुख दोनों को होता है. जो खरीदता है उसको भी होता है, जो बेचता है उसको भी होता है. डिपेंड करता है व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ योर दुख. जो चीज़ शॉर्ट टर्म में पेन देगा लॉन्ग टर्म में गेन देगा. दैट्स द रूल ऑफ लाइफ. और जो शॉर्ट टर्म में गेन दे रहा है लॉन्ग टर्म में पेन देगा. क्योर भाई जो आदमी स्मोकिंग करता है ना, जिस दिन वो स्मोक करेगा उस दिन कैंसर हो जाएगा, कभी नहीं करेगा. सर आपने कभी सुना आदमी से स्मोक किया कैंसर हो गया? वो कभी करेगा ही नहीं मैडम. कभी करेगा? कभी नहीं करेगा. उसको पता है कुछ साल बाद होगा. येस और नो. लेकिन उसको शॉर्ट टर्म में तो प्लेजर मिल रहा है ना. एनीथिंग दैट विल गिव यू शॉर्ट टर्म प्लेजर विल गिव यू लॉन्ग टर्म पेन. दैट्स अ रूल ऑफ यूनिवर्स. एंड एनीथिंग दैट गिव्स यू शॉर्ट टर्म पेन विल गिव यू लॉन्ग टर्म. इन्वेस्टिंग उसी फिलोसॉफी पे है. जो शॉर्ट टर्म में पेन को एडजस्ट नहीं कर पाएगा और लॉन्ग टर्म गेन डिजर्व भी करेगा. बिकॉज मार्केट विल गिव यू रिटर्न बेस्ड ऑन 5-7 फैक्टर्स. सर पैसा बनाने के लिए कैश चाहिए, करेज चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, माइंडसेट चाहिए, टेम्परामेंट चाहिए, एडवाइजर चाहिए. येस और नो? कैश, पैसा बनाना सिर्फ कैश का काम नहीं है सर. सर कैश इज नॉट द रीजन वाई यू विल क्रिएट वेल्थ. सर आप उधार का कन्विक्शन में धंधे में तो कामयाब हो सकते हैं, और उधार का कन्विक्शन में इन्वेस्टमेंट में कामयाब नहीं हो सकते. सर कन्विक्शन इज योर. सर केवल सर कैन गिव यू गाइडेंस. एंटायर टीम ऑफ केडी सर्विसेज कैन गिव यू गाइडेंस. सर कन्विक्शन आपका होगा. सर कन्विक्शन अगर आप हिल जाएंगे ना सर, इनका प्लानिंग मेरा प्लानिंग इज ऑल फेल. बिकॉज एट द एंड ऑफ इट इज योर मनी. सर सर आई डोंट मैनेज मनी, दे डोंट मैनेज मनी. सर सर केयूर भाई का क्या काम पता है? एंटायर टीम का क्या काम है? टू मैनेज द ओनर ऑफ द मनी. संजीव सर हम मनी मैनेज नहीं करते, हम आपको मैनेज करते हैं. रामदास सर वी डोंट मैनेज मनी, वी मैनेज यू. इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर का सबसे दुश्मन कौन है पता है? वो खुद. आपको बाहर का जरूरत नहीं है. यू विल टेक अ डिसीजन जहाँ पर आपको लगेगा सब कुछ होने. अभी कोविड के समय मैडम पीपल सोल्ड देयर पोर्टफोलियो. मैंने बोला अंकल क्यों बेच दिया? बोलता धनंजय दुनिया खत्म होने वाला है. मैंने बोला फिर बैंक में रख के क्या कर ले? ये सर नो, ये सर दुनिया खत्म होने वाला है तो बैंक में रख के क्या कर लेगा? खत्म ही होने वाला तो डिमांड में पड़ा रहता. ऊपर वाला दिखाना मैं अच्छा इन्वेस्टर था. ये सर नो, व्हाई डू यू सेल? अभी बीच में इंडिया पाकिस्तान वार होने वाला था लास्ट ईयर मई में. लास्ट ईयर यू रिमेंबर जो मई में होने वाला था, राइट सर? जो वार होने वाला था ना, लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट निकाल दिया. मैंने बोला अंकल आपने अपना फैक्ट्री बंद कर दिया? बोला नहीं. तुमको क्या लगता है बाकी सब बंद, तुम्हारा फैक्ट्री चलता रहे? उसको लगता है बाहर में बाकी दुनिया बंद है, मेरा फैक्ट्री चले, तेरा फैक्ट्री कैसे चलेगा? हम लॉजिकली तो इनलॉजिकल है ना सर. हमारा लॉजिक ही इलॉजिकल होता है जब इन्फॉर्मेशन आती है. वहाँ पर चाहिए यू नीड दिस टीम सर. व्हेन यू डोंट हैव एन एबिलिटी टू थिंक लॉजिकल सर, यू टॉक समबडी हु कैन थिंक लॉजिकल. सर पैसा बचाना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, पैसा बनाना ऑब्जेक्टिव होना है. मैक्सिमम लोग इन्वेस्टर होते हैं मैं पैसा बचा लूँ. सर पैसा बचाना इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव. पैसा बनाना कैसे है? वो 25 साल से काम कर रहे हैं, टीम इतनी सारी बड़ी है, रिसर्च हो रहा है, एक आदमी इतना एफर्ट दे रहा है. तो अगर आपके पीछे कोई आदमी खड़ा है जो एफर्ट दे रहा है सर, यू हैव टू एंश्योर दैट देयर इज अ पार्टनरशिप. येस और नो? इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप. यू डोंट ग्रो इंडिविजुअली. वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर इंटरडिपेंडेंट. मैं केयूर भाई से डिपेंडेंट हूँ, वो मेरे पे डिपेंडेंट है, आप उनसे डिपेंडेंट. येस हम उनसे कुछ शेयर करते हैं, वो मेरे को शेयर करते हैं, सर आपको कुछ शेयर करते हैं. वी ग्रो टुगेदर सर. जिसको लगता है कि मैं खुद खा लेगा और बाकी दुनिया भूखा रह जाए, सर ऐसा ब्रह्मांड में काम नहीं चलता है, राइट? तो स्टे इन्वेस्टेड, एम्ब्रेस द वॉलेटिलिटी. और आज मंदिर में जाकर दीपक लगा लीजिए कि 1-2 साल और मार्केट थोड़ा सा नीचे रहे जब तक मैं पैसा जमा कर रहा हूँ. और सर ये टाइम है लमसम का. एक्चुअली मैडम ये पैसा अगर पैसा है जो 5 से 7 साल चाहिए, ये पैसा बनाएगा. बट टाइम यू हैव टू गिव. आई डोंट नो नेक्स्ट ईयर क्या होगा सर, ये मुझे नहीं पता है. लेकिन एक चीज़ पता है कि ये जो वैल्यूएशन है ना, ये पैसे को अलग लेवल पे मल्टीप्लाई कर देगा. ओनली थिंग इज उस कन्विक्शन, उस करेज और वो टाइम. और जो फैक्टर मैंने बोला दही, आपको दही जमाने के बाद छोड़ देना है. डेली एक बार चेक करने का ज़रूरत नहीं है. और कितना सीटी चाहिए? 4. बस 4 सीटी हो गया तो आपका पोर्टफोलियो भी सीटी बजाएगा, राइट? तो सर आज का सेशन के लिए इतना ही पैसा मिला था तो मैं इतना ही बात कर पाऊंगा सर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस सर. थैंक यू सो मच.